சோதரம் 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 நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். हम परमेश्वर की ओर देखें. இந்த அருமையான ஓய்வு நாள் காலை வேளை வந்திருக்கிறோம். इस अच्छे हम लोग विश्राम दिन के लिए आए हैं. இந்த மாசத்தின் இரண்டாவது ஓய்வு நாள் வரும்படியாக इस महीने के दूसरा विश्राम दिन में आने के கர்த்தர் लिए நம்மேல் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக परमेश्वर ने हम पर रखा हुआ उस அவர் अनुग्रह के நமக்கு लिए, செய்ததான நன்மைகளை எண்ணி उसने हम पर रखा हुआ भलाई को याद தேவனை करते हुए நோக்கி நம்ம பார்க்கலாமா? क्या हम उस परमेश्वर की ओर देखें. நீங்க இருக்கிற இடத்திலேயே जहाँ पर आप बैठे हो தங்களை தாழ்த்துங்கள், अपने आप को आप झुकाइए, உங்களை வெறுமையாக்கி செவியுங்கள். अपने आप को खाली करके प्रार्थना இந்த कीजिए. தேவன் என்றென்றைக்கும் நம்முடைய தேவன், ये परमेश्वर हमेशा का हमारा परमेश्वर மரண है. பரியந்தம் நடத்துகிறவர். सदा तक मृत्यु तक हमें அவர் चलाएगा. உங்களை நடத்துகிற தேவனாயிருக்கிறபடியா, वो हमें चलाने वाला परमेश्वर அவர் உங்களை है. ஆசீர்வதிக்கிற वो தேவனாயிருக்கிறபடியா, हमें आशीष करने वाला இந்த परमेश्वर ஓய்வு है. நாள் ஆசீர்வாதங்கள் इस विश्राम दिन की आशीष है. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார். इस अच्छे दिन में प्रभु देना चाहता है. தேவனை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். क्या हम परमेश्वर की ओर देखें. நீங்க ஒருவேளை கவலையோடு கூட இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். शायद आप चिंता के साथ आप इधर बैठे பல होंगे. விதமான போராட்டத்தின் மத்தியில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். आप जो कई प्रकार की समस्या के साथ बैठे கர்த்தருடைய होंगे. வார்த்தை சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन இதை कहता है நினைத்து நீ கலங்காதே. किसी भी बात की सोच के तो चिंता न இதுவரை करना. உதவி எபெனேசர் உண்டு, अभी तक सहायता किया अबीनेज़र है. இனியும் உதவி செய்வார். अभी भी वो हमें सहायता சுகம் करेगा. தரும் யோகவா ரஃபா உண்டு, चंगा देने वाला यहोवा राफा அவர் है. பூரண சுகம் वो தருகிறவர். पूरी तरह से हमें चंगाई அவர் देता है. இன்றைக்கு वो आज भी உங்கள் கவலைகளை மாற்ற वो விரும்புகிறார். हमारे चिंता को बदलना உங்களுடைய चाहता है. பிரச்சனைகளை மாற்ற விரும்புகிறார். हमारे समस्या को दूर करना இதை चाहता है. குறித்தும் கலங்காதங்க, किसी भी कार्य के लिए இதை चिंता குறித்தும் मत करो. கவலைப்பட்டு போகாதங்க. किसी भी बात के लिए आप लोग चिंता मत உங்க करो. பாரத்தை आपका बोझ को கர்த்தர் மேல வைத்து விடுங்க. आपके परमेश्वर के पास रखिए. நல்லவர். धन्यवाद यीशु. ஜீசஸ் ஹalleluya. ये देनी तुम कलंगादे मगरे யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். இனிமேலும் நீ கலங்காதே மகனே. யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். இதுவரை உதவின எபினேசர் உண்டு, இனியும் நடத்திடுவார். இதுவரை உதவின எபினேசர் உண்டு. எல்லாரும் படிக்கலாமா? உங்களை உதவி செய்வார். இதுவரை உதவி செய்வார். இனியும் உதவி செய்வார். எதை நினைத்தும் நீ கலங்காதே மகனே. யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். சுகம் தரும் தெய்வம் யெகோவா ராஃபா உண்டு, பூரண சுகம் தருவார். எல்லாரும் இணைந்து படிக்கலாமா? இருக்கிற இடத்திலேயே தெய்வம் யெகோவா ராஃபா உண்டு, பூரண சுகம் தருவார். பூரண சுகம் தருவார். எதை நினைத்தும் நீ கலங்காதே மகனே. யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். எதை நினைத்தும் நீ கலங்கம் கவலையோடு இருக்கிற உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், இதை குறித்தும் கலங்காதே. இவன் உன்
உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். புது பலன் அடைந்து சிறகுகளை விரித்து உயர பறந்திடுவார். புது பலன் அடைந்து சிறகுகளை விரித்து உயர பறந்திடுவார். உயர பறந்திடுவார். எதை நினைக்கும் நீ கலங்காதே மகனே. யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். எதை நினைக்கும் நீ கலங்காதே மகனே. யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். சுகம் தரும் தெய்வம் யெகோவா ரப்பா உண்டே. உங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிறவர் சுகம் தருவார். சுகம் தரும் தெய்வம் யெகோவா ரப்பா உண்டே. பூரண சுகம் தருவார். பூரண சுகம் தருவார். எதை நினைக்கும் நீ கலங்காதே மகனே. யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். எதை நினைக்கும் நீ கலங்காதே மகனே. யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். யெகோவா தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார். இதை நினைத்தும் கலங்காதங்க. किसी भी बात की सोचकर चिंता मत कीजिए. கடந்த 10 ஆண்டுகள் தோளில் மேல மாதங்கள் உங்களை தோளில் மேல சுமந்தவன் पिछले 10 महीना परमेश्वर अपने कंधों पर उठाकर இந்த चलाया. 16 மாதத்துல इस 11वां महीने में உங்களை அவர் கைவிட்டு விடுவாரா? क्या उसने अपना हाथ छोड़ देगा? உங்களை அப்படியே விட்டு விடுவாரா? तो क्या ऐसे ही आपको छोड़ देगा? கலக்கத்தோடு இருக்கிறீங்களா? क्या चिंता के साथ है? துக்கத்தோடு இருக்கிறீங்களா? दुख के साथ है? உங்க துக்கங்களை மாற்றுவதற்கு आपका दुख को बदलने के लिए ஆண்டவர் போதுமானவராக காணப்படுகிறார். परमेश्वर एकदम काफी है. உங்க பாரங்களை, अपना बोझ को, உங்க கஷ்டங்களை, आपका कष्ट को, உங்க வியாகுலங்களை, आपकी चिंता को, உங்க துக்கங்களை आपका दुख को, எல்லாவற்றையும் सब कुछ தேவ சமூகத்துல வைத்து விடுங்கள். परमेश्वर के चरणों में रख அவருடைய दीजिए. சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து விடுங்கள். उसके चरणों में सौंप ஆண்டவரே, दीजिए. எதை குறித்து நான் பயப்பட மாட்டேன். मैं किसी भी बात की सोच के नहीं எதை डरूंगा. குறித்து நான் கலங்க மாட்டேன். किसी भी बात का मैं व्याकुल नहीं எதை होगा. குறித்தும் ஆண்டவரே நான் சிந்திக்காதபடிக்கு कोई भी बातों को मैं ना सोचते உம்மையே हुए நோக்கி பார்க்கத்தக்கதாக मैं सिर्फ आपकी ओर देखूंगा. உம்முடைய சோத்திரம் ஆண்டவரே கரத்துக்குள்ளாக நான் ஒவ்வொரு நாளும் வாழும்படியாக मैं आपके हाथ के अंदर ढांपे रहने என்னை के लिए அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி अपने आप को मैं अर्पण करता நாம் हूँ. ஜெபிக்கலாமா? क्या हम लोग प्रार्थना எங்களை करेंगे? அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு சோதரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता आपको இந்த धन्यवाद. அருமையான காலை வேளைக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். इस अच्छे सुबह के समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते ஆண்டவரே, हैं. இந்த மாசத்து 2வது வாரத்துல கொண்டு வந்தீரே உமக்கு நன்றி அப்பா. इस महीने के दूसरे हफ्ते में हमें लेकर आए इसके लिए धन्यवाद. யாரெல்லாம் இந்த சோதர ஆராதனையில பங்கு கொண்டு இருக்கிறாங்களோ, जो कोई इस आराधना में भाग लिए हैं, வீட்டிலிருந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்களோ, घर से परमेश्वर देख रहे हैं, ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை அவருடைய வீடுகளில் இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். आपका सामर्थ उनके घरों पर उतरे, அவங்க வசிக்கிற இடங்களில் கடந்து வரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். वो रहने वाले स्थानों पर रखे उतरे. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से பயத்தின் ஆவிகள் மாறும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். सारे भय की आत्मा दूर
हो எல்லா जाए। விதமான எதிர்காலத்தை குறித்ததான கலக்கத்தை மாற்றுங்க. भविष्य के बारे में डर को दूर कीजिए। வியாதியை குறித்ததான கலக்கத்தை மாற்றுங்க. बीमारी के बारे में डर को दूर நீ कीजिए। பயப்படாதே என்று சொன்ன ஆண்டவர் डरो मत करके कहा हुआ உடைய परमेश्वर। பிள்ளைகளை தைரியப்படுத்தி ஆண்டவரே தீர்க்காசை கொடுத்து நீர் உயர்த்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். अपने बच्चों को हिम्मत दे के दीर्घायु दीजिए। இந்த கரத்துக்குள்ளாக தாழ்த்துகிறோம் ஐயா. आपके हाथों के अंदर हम थापते இந்த हैं। ஆராதனையை முழுப்பெருப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். हमारी आराधना को आप ही परमेश्वर अपने हाथों में लीजिए। இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम எல்லா से தடைகள் மாறட்டும். सभी रुकावटें दूर हो। ஒவ்வொரு பகுதியிலும் हर एक भागों में உடைய கரம் கூட இருக்கட்டும். आपका हाथ रहे, உடைய வல்லமை கூட இருக்கட்டும். आपका सामर्थ्य रहे। ஆண்டவரே நீர் இல்லாமல் எங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஐயா. आपका बिना हम कुछ भी नहीं कर நீர் எங்களுக்கு सकते। வேணும். आप चाहिए, உடைய கிருபைகளுக்கு வேணும். आपका अनुग्रह में உடைய चाहिए। இரக்கமுள்ள கரத்துல आपका दया भरे हुए हाथों எங்களை से தாழ்த்துகிறோம். हम अपने आप को झुकाते எங்களை हैं। வெறுமையாக்கி ஜெபிக்கிறோம். अपने आप को हम खाली करते हैं। ஆராதனை துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டுமேவாக आराधना की शुरुआत से लेकर अंत உடைய तक பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். आपकी सुरक्षा இயேசு रहे। விரத்தத்தை நாங்கள் கலிக்கிறோம். यीशु मसीह का लहू को हम छिड़कते நாமத்தை हैं। மகிமைப்படுத்தும். आपके नाम की महिमा हो, ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए। இயேசுவின் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நாம் இப்போ ஒரு சில பாடலை படித்து தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। நிச்சயமாகவே பாடல் வழியாக கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்படுவார். निश्चय परमेश्वर गीतों के द्वारा हमारे साथ रहेंगे। எங்களோடு பாடலை படிக்க அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். हमारे साथ एक गीत को गाइएगा। வழக்கமாக நாங்கள் சொல்வது போல जिस तरह हमेशा हम लोग कहते हैं, நாம் ஒரு தமிழ் பாடலையும் हम एक तमिल गीत, ஒரு हिंदी பாடலையும் படித்து एक हिंदी गीत को गाकर தேவனை நாம நாவினால துதித்து परमेश्वर को हम अपनी जुबान से गीत गाकर அவரை ஆராதிப்போம். उसकी आराधना करेंगे। நீங்கள் சந்தோஷமாக எல்லா பாடலை படிக்கும்படியாக आप आनंद के साथ गीत गाने के எங்களோடு लिए, இணைந்து நீங்கள் கொள்ளும்படியாக आप हमारे साथ मिलकर गाने के உங்களை लिए அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். अब हमसे हम प्रेम से विनती करते முதலாவது हैं। தமிழ் பாடலை படிப்போம். पहले तमिल गीत गाएंगे। தலை சாய்க்கும் கல் நீரையா மூளைக்கல் நீரையா வேல் பெற்றே இது வானத்தின் வாசல் என் இயேசையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் என்ற பாடல் மூலமாக நாம் முதலாவது தேவ நாமத்தை உயர்த்துவோம். இது வானத்தின் வாசல், இயேசுயா, ஆசீர்வாதத்தின் வாசல், இது வானத்தின் வாசல், இயேசுயா, ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரப்புவாய் பூமியின் துளை போல் சந்தனம் பெருகும் என்று வாக்குறுத்தீர். மேற்கு கிழக்கு வடக்கு தெற்கு பரப்புவாய்
ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் இது வானத்தின் வாசல் இயேசுயா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் பூமியின் வம்சங்கள் உலகும் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆசீர்வாதம் வாய்க்கலாக என்னை மாற்றினீரே. பூமியின் வம்சங்களுக்குள் உலகும் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று வாதவைகளாக என்னை மாற்றினீரே. சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே மாட்டீர். சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடவே மாட்டீர். இது வானத்தின் வாசல் இயேசுயா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் இது வானத்தின் வாசல் இயேசுயா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் தரிசாய்க்கும் கல்லியா கல்லியா தரிசாய்க்கும் கல்லியா மூளை கல்லியா இது வானத்தின் வாசல் இயேசுயா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் இது வானத்தின் வாசல் இயேசுயா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல். அல்லேலூயா Hallelujah. அல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग एक हिंदी गीत गाएंगे। गीत का नाम है अद्भुत है अद्भुत है। आप सब हम लोग के साथ गाइए ताली बजा के खुशी के साथ। अद्भुत है, 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 यीशु अद्भुत है। सारी
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। अभी हम एक भजन संगीता पढ़ने जा रहे हैं। भजन संगीता 72। प्रार्थना। परमेश्वर हमारे वचन पढ़ने वाले हमारे मन की हृदय को खोलते। आमीन। भजन संगीता 72। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखा दे। वह तेरी प्रजा का न्याय दर्द से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। அவர் உம்முடைய ஜனங்களை நீதியோடும் உம்முடைய ஏழைகளை நியாயத்தோடும் விசாரிப்பார். पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधे करने वालों को चूर करेगा। ஜனத்தில் சிறுமைப்பட்டவர்களை அவர் நியாயம் விசாரித்து ஏழையின் பிள்ளையை ரட்சித்து இடுக்கண் செய்கிறவனை நொறுக்குவார். जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोगों पीढ़ी पीढ़ी तेरे भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेघ और भूमि सींचने वाले जड़ियों के समान होगा। புல் அறுப்புண்ட வெளியின் மேல் பெய்யும் மழையைப் போலவும் பூமியை நினைக்கும் தூரலைப் போலவும் இறங்குவார். उसके दिनों में धरती फूल फूलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் வரைக்கும் நதி தொடங்கி பூமியின் எல்லைகள் வரைக்கும் அவர் அரசாளுவார். उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी छोड़ेंगे। दक्षिण और द्वीप के बीच राज्यों पे आएंगे, शेबा और सबा दोनों का राजा उपहार पहुंचाएंगे। தர்சீசின் ராஜாக்களும் தீவுகளின் ராஜாக்களும் காணிக்கைகளை கொண்டு வருவார்கள். சேபாவில ராஜாக்கள் வெகுமானங்களை கொண்டு வருவார்கள். सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। क्योंकि वह दुहाई देने वाला दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य के उद्धार करेगा। கூப்பிடுகிற எளியவனையும் உதவியற்ற சிறுமையானவனையும் அவர் விடுவிப்பார். वह कंगाल और नारीद्रय पर तरस खाएगा और नारीद्रय के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधे और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। அவர்கள் ஆத்துமாக்களை வஞ்சகத்துக்கும் கொடுமைக்கும் தப்புவிப்பார். அவர்கள் ரத்தம் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையா இருக்கும். वह जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसके लिया जाएंगे। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लाबनोन के देवदारों के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहराएंगे। பூமியில மலைகளின் உச்சிகளில் ஒரு பிடி தானியம் வைக்கப்பட்டு விதைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதன் விளைவு லேபோனை போல அசையும். பூமியின் புல்லை போல நகரத்தால் செடி தொங்குவார்கள். उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियों उनको धन्य कहेंगी। धन्य है वह परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। இஸ்ரவேலின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அவரே அதிசயங்களை செய்கிறவர். उसका मय मुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगा। आमीन फिर आमीन। ईशे के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। ஈசாயின் புத்திரனாகிய தாவீதின் விண்ணப்பங்கள் முடிந்தது. ஆமென். आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतने समय हम अच्छा गीत गाए, परमेश्वर का वचन को हम अभी थोड़ी देर ध्यान करने जा रहे हैं। जो भजन संगीता हम लोग ने पढ़ा था वो 72 भजन संगीता है। सब लोग अपने हाथ में बाइबल लीजिए और अपना बाइबल खोलकर इस वीडियो के सामने बैठिएगा, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के चरणों में बैठते समय कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। अपना हाथ में कुछ महंगा चीज़ हो ना हो, लेकिन बाइबल अपने हाथ में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सब लोग अपने हाथों में बाइबल उठाइए। ये दुनिया की सबसे बड़ा कीमती चीज़ है। इसे ये हमें जीवन देता है, हमें रक्षक करता है, हमें मार्ग दिखाता है। तो सब लोग अपने हाथों में बाइबल लीजिए और बाइबल में खोलिए भजन संगीता 72। और ये भजन संगीता में 1 से लेके 20 तक वचन है। और ये भजन संगीता सुलेमान का गीत करके लिखा गया है। सुलेमान किसका पुत्र है? ये तो आपको सबको पता होगा, दाऊद का पुत्र है। तो
जो भजन संगीता है, कई भजन संगीता में हम अनेक इतिहास को हम पढ़ सकते हैं, जो दाऊद का जीवन में क्या हुआ क्या नहीं करके। और कई बार दाऊद का कहराना यानी उसका रोना, वो उसका दुख, वो भी भजन संगीता में कहा है। कई बार उसने अपने आनंद में, खुशी में रहते समय परमेश्वर की उसने आराधना की, गीतों के द्वारा उसकी महिमा की है। ये भजन संगीता एक प्रार्थना भजन संगीता जैसा भी हम कह सकते हैं। और इसे हम मसीहा के आधार पर हम कह भी सकते हैं, क्योंकि कई वचन ऐसा है कि मसीह जब 1000 वर्ष में राज्य करेंगे तो क्या क्या करने वाला है, क्या क्या होने वाला है, उसके आने से क्या होगा, ये भी हम लोग इस भजन संगीता को पढ़ेंगे। इस भजन संगीता पढ़ते समय हम केवल एक सुलेमान का भजन संगीता ही ना ही पढ़ते हुए हम एक आने वाला हमारा मसीहा का ये भजन संगीता है, ये भी ध्यान रखें। हम लोग ये वचन को ध्यान करेंगे। ये वचन में हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला वचन से लेके 4 वचन तक राजा की राज्य के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। पहला भाग है राजा की राज्य के बारे में, और 5 से लेके 7 वचन तक राजा की आनंद के बारे में है। और तीसरा भाग में हम देखेंगे राजा की नाम यानी कि तारीफ भी हम लोग ध्यान करेंगे। वो 8 से लेके 20 वचन तक हैं। राजा के जीवन में हम देखा जाए, दाऊद राजा जब भी उसका उम्र बीता गया, जब उम्र उसका बुजुर्ग हो गया, जब भी उसका मृत्यु का समय निकट आने जा रहा था, तभी वो क्या करता है, अपने पुत्र को अपने स्थान में उसका राजगद्दी पे उसे बैठाना चाहता है। तो ये वो कहने के वो समय पर वो अपने पुत्र को क्या क्या सिखाया, वो हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। और क्या हम लोग इसमें हमें क्या इसमें सीखने मिलता है और हमें क्या करना चाहिए, ये भी हम लोग ध्यान करेंगे। पहला वचन से 4 वचन तक हम लोग देखा जाए तो हे परमेश्वर, राजा अपने नियम बता, राजपुत्र का अपना धर्म को सिखला करके वो शुरू करता है। और वो तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरी 3 लोगों को न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियां से प्रजा के लिए धर्म का द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के 3 लोगों को न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। ये एक प्रार्थना का जैसा हम ले सकते हैं। दाऊद को पता चल रहा है कि अभी वो कुछ ही दिन में उसका भी अंत होने वाला है, तो उसके पहले वो अपने पुत्र के लिए परमेश्वर से क्या करता है, एक प्रार्थना करता है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे जाएगी, जब कभी इस दुनिया में जब हमारे कितने पेरेंट्स लोग हैं, आप अपने बच्चों के लिए चाहे धन दौलत घर बार कितना भी आप उनके लिए कमा के रखें, लेकिन प्रार्थना का वो ब्लेसिंग कमा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। बाहर के लोग कहते हैं अगर माँ बाप आशीर्वाद देते हैं तो बहुत दिन तक हम आशीष रहते हैं करके अन्य लोग कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए खास करके अपने बच्चों के लिए विशेष करके प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ पे दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे पुत्र जो सुलेमान है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, विनती करता हूँ, उसको अपने धर्म के बारे में सिखला कि मेरा भी देहांत होने वाला है, मेरे पद में अभी मेरा बेटा बैठने वाला है, तो उसे पता नहीं कि क्या क्या करना चाहिए, कैसा उसे ये राज्य में कैसा लोगों को चलाना चाहिए, उनका कैसा न्याय चुकाना चाहिए, उसे पता नहीं है। तो जरा उनको क्या करना, ये सब बातें उनको सिखला देना। और अनेक दीन दरिद्र लोगों को वो क्या करना चाहिए, न्याय चुकाना चाहिए, और दरिद्र लोगों को वो क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्योंकि जब भी राजा दाऊद के ज़माने में इस्राएल लोगों को वो क्या करता था, बचा कर आ रहा था, उनको दुख पूछताछ करता था, उनको कमी का पूछताछ करता था, उनकी ज़रूरत क्या है वो सब क्या करता था, वो पूरा करके आया। मतलब दाऊद के राज्य में ऐसे कोई लोग नहीं थे जिसके अंदर कोई कमियाँ थी। तो वही कहता है कि मेरे पुत्र के ज़माने में भी, मेरे पुत्र जब भी राजा राज्य करते समय वो उसके ज़िंदगी में भी कोई भी कमी घटी किसी लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से वो क्या कर रहा था, परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था। दूसरा भाग में हम देखेंगे राजा की आनंद के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। तो 5वें वचन से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहे तब तक लोग पीढ़ी से पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। दूसरा इतिहास
और पहला राजा के अगर आप समय मिलेंगे तो ध्यान करके कीजिएगा। दाऊद अपने पुत्र को पहले ही एक बार समझाता है कि तू अगर परमेश्वर को ढूंढेगा तो वो तुझे मिलेगा, अगर तू परमेश्वर से दूर जाएगा वो परमेश्वर तुझे नष्ट करेगा। ऐसा करके पहले से ही अपने पुत्र को क्या करके रखा है, उसने समझा के रखा है। इसीलिए बचपन से ही हम भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा तू हमारा बेटा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तुझे परमेश्वर ने हमें दिया है, तुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुझे चलना चाहिए। तुझे क्यों इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा है वो मकसद परमेश्वर के तो पूरा करना चाहिए। ऐसा करके पेरेंट्स क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को ये बचपन से सिखाते सिखाते जब भी वो बड़े होंगे, जवान होंगे, तब तक आप उनको क्या करते रहना है, बता के रहना है, बता के चलते रहना है कि मैंने तेरे लिए ऐसा ऐसा प्रार्थना किया था, मैं तेरे लिए परमेश्वर से ऐसा वरदान मांगा था, तेरे लिए मैंने मन्नत माना था। ऐसा सब परमेश्वर अपने बच्चों को पेरेंट्स क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, और साथ में उनको चेतावनी भी क्या करना है, देना है। दाऊद भी अपने पुत्र को चेतावनी दिया था, जब तक तू उसको ढूंढेगा वो तेरा निकट रहेगा, अगर तू ढूंढेगा नहीं वो तुझे क्या करेगा, नष्ट करेगा। ऐसा करके पहले ही उसे क्या करके रखा है, चेतावनी करके रखा है। तो हम भी अपने बच्चों को क्या करना है, प्यार से सिखाना भी ज़रूरी है, साथ में उनको चेतावनी भी देना भी ज़रूरी है। तो हम अपने बच्चों को अनेक कार्यों से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो और छठा वचन में वो घास की खूंटी के बरसने वाले मेघ भूमि सींचने वाले झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे, जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक वो शांति बहुत रहेगी। अगर तू अच्छे से परमेश्वर को ढूंढेगा तो तुझे परमेश्वर क्या करेगा, इसी प्रकार से तुझे क्या करेगा, फूले और फलाएंगे, और तू शांति तेरे जीवन में क्या रहेगा, बना रहेगा। तो कभी हम वचन में पढ़ते समय जब भी सुलेमान अपने राज्य गद्दी में बैठ गया, बैठने के बाद हम देख सकते हैं कि उसके वर्ष में जब तक वो राज गद्दी में था तब तक वो इजराइल पूरा कैसे थे, एकदम शांति से था। वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया था उसके साथ। जिस तरह उसका पिता ने उसके लिए प्रार्थना किया था वैसे ही परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुनकर जब तक वो राज्य गद्दी में था तब तक उसके जो राज्य में शांति बनी रही थी, कोई लड़ाई कोई युद्ध नहीं था। तीसरा हम लोग भाग में देखेंगे 8 से लेकर 20 वचन तक आप पढ़ेंगे तो राजा का नाम और तारीख, उसकी तरफदारियाँ। तो अभी कौन बैठने जा रहा है, बैठ गया सुलेमान अपने राज्य गद्दी में, क्या हुआ, बैठ गया उसके पिता के सिंहासन के पास, वो बैठ गया। तो बैठते समय वो परमेश्वर से विनती करता है। पहला राजा 3 अध्याय उसके 9 से लेकर 14 तक आप भर में पढ़ेंगे तो वो जब भी बैठने के बाद परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे ऐसा एक मुझे वरदान दे कि मैं इन लोगों को क्या करूं, न्याय चुकाऊं। परमेश्वर क्या करता है, उसकी भलाई अच्छे कार्य को देख के परमेश्वर खुद ही कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो हम लोग कितना खुश रहेंगे ना जब हमारे पास परमेश्वर आके कहेंगे मैं तेरे लिए क्या करूं, तो हम लोग का पास एक बड़ा लंबा लिस्ट रहेगा। परमेश्वर इस महीना मेरा ये ज़रूरत है, ऐसा है वैसा है। बच्चे लोग बोलेंगे एग्ज़ाम ही नहीं होना चाहिए, और कोई बच्चे लोग बोलेंगे स्कूल ही नहीं खुलना चाहिए, तो स्कूल सबका बंद है, सबका ऑनलाइन चल रहा है। तो सबका बड़ा बड़ा लंबा क्या होएगा, लिस्ट रहेगा, है ना। तो वैसे लेकिन सुलेमान ने ऐसा प्रार्थना नहीं की। सुलेमान ने क्या किया, परमेश्वर मुझे क्या दे, सिर्फ मुझे बुद्धि दे, क्या दे, मुझे बुद्धि दे, ऐसे लोगों का मैं न्याय किस तरह चुकाऊँ, अच्छी तरह मैं उनका चुकाऊँ, जिस तरह मेरे पिता ने जब भी रहते समय किए थे उसी तरह मैं भी अच्छा से 3 दरिद्र लोगों को पूजा करूँ, उनका न्याय चुकाऊँ। ऐसा करके क्या करा था, परमेश्वर से वो वरदान मांगा था। तो आप नीचे पढ़ते आएंगे तो वचन में देखा जाए कि परमेश्वर कहता है कि तूने तो मुझसे क्या मांगा, एक छोटा सा चीज़ मांगा है। क्या मांगा है, तूने मुझसे एक छोटा सा ही चीज़ मांगा है। मैं तुझे क्या कहता हूँ कि तूने तो जो इतना सा चीज़ मांगा है ना, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, साथ में तुझे वो भी दूंगा जो अभी तक किसी ने पाया नहीं है, मतलब धन दौलत और शांति प्रेम, ये सब कुछ मैं तुझे क्या करूँगा, मैं ज़्यादा तुझे दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर क्या कहता है, सुलेमान से परमेश्वर कहता है। तो देखिएगा परमेश्वर ने उसे
वो भी दिया, और जो उसने नहीं मांगा था वो भी साथ में क्या किया, दिया। तो इसका जो नाम इतना मशहूर हो गया, तो इसे ढूंढकर कहीं के राजा लोग क्या के राज्य के लोग आके इससे मिलने के लिए आए। परमेश्वर ने क्या बोला था उसको कि मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, साथ में धन संपत्ति और लोग भी मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा करके कहा था। तो देखिए यहाँ पे आप 10वां वचन में देखिए, दर्शित के द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, शेबा और सभा दोनों की राज्य उपहार पहुंचाएंगे। तो देखिए उस शेबा एक रानी, उससे भी पता चला कि इस सुलेमान का बारे में उतना मशहूर नाम उसका था, इतना बड़ा बुद्धि, इतना बड़ा ज्ञानवान, इसको इस राजा को मुझे देखने जाना है करके शेबा भी साथ में रानी क्या आई थी। वो ऐसे ही नहीं आई, साथ में क्या लेके आई, उसके लिए उपहार, उसके लिए गिफ्ट लेकर आई। तो गिफ्ट क्या होता है, सोना चांदी पैसे बहुत सारा, उसके लिए क्या किया, तोहफा वो लेके आया, शेबा लेके आया था। और उतने ही तर्शीश के द्वीप के राजा भी उसको क्या करने लाए, भेंट लेकर आए। तो सोचिए ये यहाँ के तरफ के एक राजा भेंट लाए, वो दूसरा राज्य का देश का एक राजा उसको भेंट लाए, ऐसा हर देश के राजा लोग उसको भेंट लेके आए। तो उसके पास जरूर धन संपत्ति कैसा रहेगा, बड़ा ही रहेगा। उतना ही नहीं, जब दाऊद का परमेश्वर का भवन बांटने को परमेश्वर ने उससे नहीं कहा था, लेकिन सुलेमान को बांधने के लिए परमेश्वर ने कहा था। तो सुलेमान के पास इतना एक बुद्धि मस्त था कि वो क्या करता था, भवन को इतना सुंदर से बांधा, और वो भवन देखने के लिए भी वहाँ अनेक लोग क्या किए, आए और उसके बड़े बड़े तरफदारी किए। और 14 वचन में हम देखेंगे, वो उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। देखिए जो अंधेर करते हैं, जो तकलीफ पहुंचाते हैं, उन लोगों को जो सुलेमान क्या करता था, छुड़ा कर आया, उन्हें संभाला। और उतना ही नहीं, सुलेमान के जीवन में देखा जाएंगे तो उसका कभी भी अन्न क्या नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। और उसकी 16 वचन में देखेंगे, देश में पहाड़ों की चोटियां पर बहुत सा अन्न होगा और जिसके बाले लबनोन के देवदार के समान झूमेंगे और नगर के लोग घास के समान लहराएंगे। तो उसके जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास अन्न नहीं है, किसके पास कमी है, किसके पास ज़रूरत है, बहुत सारा ज़रूरत है जो नहीं हो रहा है, ऐसा कहने वाला ही नहीं था। उतना आशीष परमेश्वर ने किसको दिया था, सुलेमान को दिया। तो हम भी इस सुलेमान की तरह हम भी परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे। इस बड़ा दुनिया में हम जी रहे हैं, तो ये हमारे पास पता नहीं कि इस व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, हमारे सामने वाला व्यक्ति कैसा है, इनसे बात निपटाने के लिए हमें कैसा बात करना चाहिए, ये हमें क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो परमेश्वर से हम क्या करेंगे, बुद्धि मांगेंगे। परमेश्वर कहता है जो बिना उल्लाहन से सबको एक बराबर देने वाला परमेश्वर आपको भी क्या करेगा और बुद्धि देगा। आप ऐसे ही मांगिए, परमेश्वर से विनती कीजिए। आप जो भी करने चाहते हो, आपकी पढ़ाई हो, काम हो, बिजनेस हो, आपको घर चलाने का काम हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, परमेश्वर से क्या मांगे, बुद्धि मांगे। परमेश्वर कैसे चलाएं, हम होकर खुद क्या नहीं कर सकते, चला नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार हम इस वचन से हम लोग सीख सकते हैं। तो परमेश्वर के पास हम कैसा मांगना चाहिए, किस तरह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, किस तरह अपने बच्चों को चेतावनी देना चाहिए, किस तरह हम सुलेमान की जैसा परमेश्वर से बुद्धि मांगना चाहिए करके हम यहाँ पे पढ़े थे। आखिरी वचन में देखें, ईशाई के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं क्या हुई, समाप्त हुई। उसने प्रार्थना करके क्या किया, समाप्त कर दिया। इतना सारे व्यक्ति था उसके पास, उसने क्या करे, समाप्त करके परमेश्वर को पास धन्यवाद बोल दिया है। तो हम भी क्या करें, परमेश्वर को निरंतर प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रभु के पास खड़ा रहेंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे और हम अपने परिवार, अपने बच्चों समेत परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, सभी घुटने टेकिए। इस अभी अच्छे समय में हम लोग आए हैं, एक बड़ा एक अवसर है, यही समय है हम परमेश्वर की क्या करने, आराधना करने का, यही समय उसकी प्रार्थना करने के लिए। आइए हम सब लोग आंखें बंद करके इस आराधना के समय में हम अपने आप को सौंपेंगे, परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु जी, परमेश्वर मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु। हमें इस दुनिया में जीने नहीं आता है प्रभु जी,
कौन हमें फंसाता है, कभी हमें फंसाता है पता नहीं प्रभु। हम अच्छे से ही जीते प्रभु, अच्छे मन से बात करते हैं, अच्छे ही सोच के उनके साथ रिश्ता निभाते हैं, लेकिन कभी ये लोग धोखा देता है करके हमें पता नहीं प्रभु जी। परमेश्वर ऐसे लोगों को समझने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए करके हम सब लोग परमेश्वर से विनती करेंगे। जिस तरह सुलेमान ने जो प्रार्थना किया था, परमेश्वर इन लोगों को न्याय चुकाने के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता है करके, परमेश्वर कहता है कि तूने इतना बड़ा कुछ नहीं मांगा, ना तुझे धन मांगा, ना तुझे दौलत मांगा, तूने मुझे एक छोटा सा ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए करके मांगा करके परमेश्वर ही बड़ा आश्चर्य हुए हैं। तो देखिए परमेश्वर उस छोटा कार्य को भी उसको पूरा करके, और जो उसने नहीं मांगा था वो भी परमेश्वर ने उसको पूरा करके दिया है। कितना अच्छा परमेश्वर है। देखिए हम भी कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मांगते हैं प्रभु से, लेकिन देखा जाए परमेश्वर लोग कहते हैं अगर ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है करके। कभी कभी अपने जीवन में भी ऐसे ही परमेश्वर ने किया है। हमने कभी छोटा चीज़ मांगे होंगे, लेकिन परमेश्वर इतना भर कर हमें दिया है, हम उसे कहने के लिए भी शब्द नहीं होता है। तो आज हम सब प्रभु को धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर ये 10 महीना प्रभु हम कैसा पार होके आए हमें पता नहीं प्रभु जी। ये महीना नवंबर महीना में कदम रखूंगा या नहीं रखूंगा मुझे पता नहीं था प्रभु। मेरा जीवन कैसा रहेगा, मैं जिंदा रहेगा या मरेगा मुझे पता नहीं था प्रभु जी, लेकिन आपने मुझे जीवन दिया है। इस संडे दूसरा संडे तक प्रभु आपने मुझे जिंदा रखा है करके परमेश्वर के पास आप लोग सब धन्यवाद कीजिए। कितना अच्छा प्रभु है। देखिए इतना अच्छा परमेश्वर का हम लोग कहाँ ऐसा ढूंढ सकते हैं, किधर हम पाएंगे। देखिए इतना अच्छा प्रभु को आपको और हमें दिया गया है, उसी ने हमें दिया गया है। और हम वचन में देखते जिस तरह दाऊद अपने बच्चों के लिए उसने प्रार्थना किया था, तो आज भी आप सब लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आज कोई ऐसा नहीं कह सके कि मैं अपने बच्चों के लिए खुश हूँ करके, नहीं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चे करने वाले करतूत के बारे में रोते हैं, उनकी क्रिया के बारे में सोच के रोते हैं। कोई पेरेंट्स खुश नहीं अपने बच्चों से। आज हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे बच्चों को ऊपर आप तरस खाइए प्रभु जी। मेरे बच्चे मेरे हाथ से छूटते जा रहे हैं परमेश्वर, मेरे बच्चों को छू लीजिए प्रभु, मेरे बच्चों को रक्षा कीजिए करके परमेश्वर से आप लोग विनती कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। वो प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, वो प्रार्थना सुनकर हमारे उत्तर देने वाला परमेश्वर। देखिए आप ऐसा प्रार्थना करके आंसू बहाकर आप गिराम कर परमेश्वर से विनती करके देखिए, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। वो हमारे अभिनेश्वर है, वो अभी तक हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर है, वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। आपका जिंदगी में क्या चल रहा है, आपका परिवार में क्या चल रहा है, ये सब देखने वाला हमारा परमेश्वर। कितना अच्छा परमेश्वर है। देखिए उस परमेश्वर से विनती करें। ये समय प्रार्थना करने का समय है, कोई भी चुप मत बैठिए। हाँ, सभी आराधना कीजिए परमेश्वर को, परमेश्वर को स्तुति कीजिए। आपका जो भी जरूरत है, जो भी विनती है, वो परमेश्वर के पास सौंप दीजिए। वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हमारा प्रार्थना को कभी कुछ नहीं जानता है, हमारा प्रार्थना से नफरत नहीं करता है, हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। सभी लोग प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग अपने मुख खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब की रैया जयम तंदीरैया, जब की रैया जयम तंदीरैया,
அப்பா நல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே. கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா, கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா, விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா, விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா. புகழெங்கள் பாட்டு பாடி புயலென்று ஓய்ந்த புது ராகம் பிறந்தது. புகழெங்கள் பாட்டு பாடி புயலென்று ஓய்ந்த புது ராகம் பிறந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, என்றும் என்றும் நல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, என்றும் என்றும் நல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே. எபினேசரேதானையா, இதுவரை உறவினரே. எபினேசரேதானையா, இதுவரை உறவினரே. எல்லோரை நீதானையா, எங்களையும் கண்டீரையா. எல்லோரை நீதானையா, எங்களையும் கண்டீரையா. புகழெங்கள் பாட்டு பாடி புயலென்று ஓய்ந்த புது ராகம் பிறந்தது. புகழெங்கள் பாட்டு பாடி புயலென்று ஓய்ந்தது புது ராகம் பிறந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே, என்றும் என்றும் வல்லவரே. आंसू को तूने देखा, हाथ मेरा तूने थामा। आंसू को तूने देखा, हाथ में तूने थामा। तूने दुनिया चला, छुटकारा तूने दिया। तूने दुनिया चला, छुटकारा तूने दिया। स्तुति का गीत गाने, तूफानों को शांत करने नया राग पाया है। स्तुति का गीत गाने, तूफानों को शांत करने नया राग पाया है। शुक्रिया तुम्हें भला, आज और सदा तुम्हें महान। शुक्रिया तुम्हें भला, आज और सदा तुम्हें महान। आज और सदा तुम्हें महान, आज और सदा तुम्हें महान। तूने सुनी प्रार्थना, जय प्रभु ने दिया। तूने सुनी प्रार्थना,
चलाया तान के, त्यागा नहीं तूने, चलाया तान के, स्तुति का गीत गाके तूफानों को शांत कर नया राग पाया है। स्तुति का गीत गाके तूफानों को शांत कर नया राग पाया है। शुक्रिया तूने भला, आज सदा तूने भला। शुक्रिया तूने भला, आज सदा तूने भला। आज सदा तूने भला, आज सदा तूने भला। स्तुति का गीत गाके तूफानों को शांत कर नया राग पाया है। स्तुति का गीत गाके तूफानों को शांत कर नया राग पाया है। पूरे पाटे पाटे पूरे हिंदी बोल कर पूरा शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। शुक्रिया तू है भला, आज सदा तू है भला। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। परमेश्वर हम सब शुक्रिया करेंगे, आपको ही शुक्रिया प्रभु जी, आपको ही धन्यवाद परमेश्वर। आप हमारी सब प्रार्थना को अपने सुना पिता। हमारे परमेश्वर यहाँ पे बैठे हुए जितने आपके बच्चे हैं प्रभु, अपने परमेश्वर परिवार के लिए शायद परमेश्वर आपके पास प्रार्थना किए होंगे, अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाए होंगे प्रभु, अपने लिए प्रार्थना किए होंगे प्रभु जी। इन सबकी प्रार्थना आप सुन लीजिए, उनको उत्तर आप दीजिए प्रभु जी परमेश्वर, ताकि ये लोग भी आने वाले दिनों में परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना है इसके लिए शुक्रिया करके कहने वाले बनने के लिए इन सभी को आप छू लीजिए। हमारे आराधना को आपने आशीष करके दिया, आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव केवल आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துரை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेम की बधाई कर देते நாம் हैं। இதுவரைக்குமாக ஒரு சில பாடலை படித்தோம். अभी तक हमने कुछ गीतों को सुने। மெடிடேஷன் படிக்கும்படியாக கர்த்தர் கிருபையிலே கொடுத்தார். मेडिटेशन ध्यान देने के लिए परमेश्वर ने मदद की है। கொஞ்ச நேரமாக தேவனை ஆராதித்தோம். थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना की है। இப்பொழுது கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து செல்லுவோம். अभी हम परमेश्वर की वचन की तरफ हम जाएं। நிச்சயமாக இந்த வசனத்தின் மூலமாக निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा இந்த வாரத்தில் உங்களோடு கர்த்தர் பேசுவார். इस हफ्ते में परमेश्वर आपसे बात இந்த करेंगे। வசனத்தின் மூலமாக கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார். इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको परमेश्वर கர்த்தர் உங்களை தேற்றுவார். आपको दिलासा देंगे, உங்களை கைவிடாதபடிக்கு आपको हाथ न छोड़ते அவர் हुए வழி நடத்துவார். आपको मार्ग दिखाएगा। நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையோட கடந்து செல்லுவோமா? क्या हम परमेश्वर के वचन में जाएं? ஜெப நிலையில் இருக்கும்படியாக प्रार्थना की स्थिति में रहने के உங்களை लिए அன்புடன் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். आपसे हम प्रेम से विनती करते हैं। கொலோசியர் कुलोसियों 1 அதிகாரம் अध्याय पहला 27வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 27 वचन हम पढ़ेंगे। நான் முதல்ல தமிழ்ல படிக்கிறேன், पहला तमिल पढ़ेंगे, பிற்பாடு இந்தியில படிக்கலாம். फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। கொலோசியர் 1 அதிகாரம் 27வது வசனம். புறஜாதிக்குள்ளே விளங்கிய இந்த ரகசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்று தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியப்படுத்த சித்தமானார். கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு இருப்பதே அந்த ரகசியம். कुलोसियों पहला अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। பிரைஸ் எல்லாம். हालेलुया। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த கொலோசியர் சபைகளுக்கு நம்முடைய விசுவாசி எழுதும்போது ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். प्रेरित पौलुस कुलुसियों की विश्वासियों को लिखते समय कहता है, தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு परमेश्वर अपने पवित्र जनों के लिए தெரியப்படுத்த சித்தமானார். वो अपना भेद बताना चाहा। அவர் என்ன தெரியப்படுத்த சித்தமானார்? क्या बताना चाहा? சோத்திரம். கிறிஸ்துவானவர் மகிமையை நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு இருப்பது அந்த ரகசியம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. मसीह जो महिमा की आशा है वो जो तुम में रहता है वही भेद है। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் தம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்கு, परमेश्वर जो अपने से प्रेम रखता है, பரிசுத்தவான்களுக்கு पवित्र लोगों के लिए தம்மை தெரியப்படுத்தும்படியாக, अपने आप को प्रकट दिखाने, தம்முடைய சோத்திரம் வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படியாக, अपनी सामर्थ को प्रकट करने, தம்முடைய ரகசியத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக अपने रहस्यों को बताने அவர் சித்தமானார். वो चाहा। நீ நம்பிக்கையின் வாசமாய் இருக்கும் என்றுதான் தலைப்பில் भरोसा की निवास रहने वाला इस टाइटल से அந்த காரியங்களுக்கு நம்ம கர்த்தர் பேசுவாராக. उस बातों से परमेश्वर हमसे बातें பவுல் करें। என்ன தெரியப்படுத்த சித்தமானான்னு சொல்லி அங்க வேதத்துல வாசிக்கும் பொழுது, पौलुस क्या बताना चाहा करके हम देखते समय, கிறிஸ்து உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் मसीह अगर आपके अंदर वास किया அது மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு இருப்பது ரகசியம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். वो महिमा की जो आशा है जो तुम में भेद से रहता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் நமக்குள்ளாக இல்ல உங்களுக்குள்ளாக இருப்பது பெரிய ஒரு பாக்கியம். परमेश्वर जो है हमारे या फिर आपके अंदर रहना यही बड़ा सौभाग्य है। சோத்திரம். மற்ற எல்லா மார்க்கங்களை விட सब मार्गों से சோத்திரம் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் எதினாலே விசேஷத்தை நீங்க பார்க்கும் பொழுது, मसीह की मार्ग किस प्रकार की विशेषता है? கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் மகிமையின் நம்பிக்கை உண்டு. मसीही जीवन में एक विश्वास की भरोसा है। அந்த மகிமையின் நம்பிக்கை எப்படி நமக்குள்ளாக இது கடந்து வர என்று சொன்னால், वो महिमा का भरोसा कहाँ से आता है? அந்த ரகசியம் என்னென்று பவுல் அங்க சொல்லும்போது சொல்லுகிறார். पौलुस वो भेद क्या है कहता है, கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு இருப்பதே அந்த ரகசியம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். मसीह जो है आपके अंदर जो रहता है यही बड़ा भेद है। சோதரர் அவர் நமக்குள்ளாக இருக்கிறார். वो हमारे अंदर रहता है। அதனால इसीलिए நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது, हमें एक भरोसा है, நமக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறது. हमें एक विश्वास है, சோதரர் நமக்குள்ளாக ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு கூட हम एक बड़े इंतजार நாம் से ஆண்டவருடைய வழிகளிலே हम परमेश्वर के मार्गों அவருடைய में சித்தத்தை செய்யும்படியாக, उसकी मर्जी को पूरा அவருடைய करने
விருப்பத்தை செய்யும்படியாக उसी की इच्छा को पूरी करना, நாம் அதை நிறைவேற்ற நம்ம விரும்புகிறோம். हम वो पूरा करना चाहते हैं। ஆண்டவர் சோதரம் அதைத்தான் நம்மளை எதிர்பார்க்கிறார். वही परमेश्वर भी चाहता அந்த है, மகிமையின் ஆவியானவர், वो महिमा का அந்த परमेश्वर, மகிமையின் தேவன் वो महिमा का प्रभु நமக்குள்ளாக அவர் இருக்கிறார். हमारे अंदर रहता அவர் है, உங்களுக்குள்ளாக அவர் இருக்கிறார். वो आपके अंदर भी வேறு रहता எந்த है। மார்க்கத்திலும் இந்த நம்பிக்கை இல்லை. इस प्रकार कोई मार्ग में ये भरोसा ஆனால் नहीं நாம் है, அதில் விசேஷித்தவனமாக கர்த்தர் நம்மளை இந்த உலகத்துல வைத்திருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर आया में एक बड़ा विशेषता रखा है। கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर क्या कहता நான் है, உங்கள் நடுவிலே உலாவி मैं तुम्हारे मध्य में निवास करके உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன். मैं तुम्हारा परमेश्वर நீங்கள் होगा என் ஜனமாய் என்று சொல்ல இருக்கிறார். और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। அவர் சொல்லுகிறார். वो कहता है, அந்த மகிமையின் தேவன் சொல்லுகிறார். वो महिमा का परमेश्वर நான் कहता உங்கள் है, நடுவிலே मैं तुम्हारे நான் मध्य में, உலாவுகிற தேவன். मैं यहाँ वहाँ मंडराता நான் हूँ, உங்கள் தேவனாய் இருக்கிறேன். मैं तुम्हारा परमेश्वर நீங்கள் हूँ என் ஜனமாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி और तुम मेरी प्रजा हो। அவங்க ஆண்டவர் சொல்வதை பார்க்கிறோம். परमेश्वर वहाँ पे कहता அது है, மாத்திரமல்ல, उतना ही என் नहीं, நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் जहाँ कहीं मेरा नाम लिया எந்த जाएगा, ஸ்தானத்தில் வந்து कोई भी स्थान क्यों ना हो, நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்ல मैं இருக்கிறார். आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कहता என் है। நாமத்தினாலே मेरे नाम से 2 பேராவது 2 பேராவது या 3 लोग எங்கே கூடுகிறீர்களோ जहाँ इकट्ठे அவர்கள் हैं, நடுவே இருப்பேன் என்று கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். उनके मध्य में रहता हूँ करके प्रभु அப்போ प्रतिज्ञा देता है। ஆண்டவர் அந்த மகிமையின் தேவன் जो महिमा का परमेश्वर நமக்குள் இருப்பதே हमारे अंदर जो அது ஒரு रहता பெரிய है, ரகசியமா காணப்படுகிறது. कोई बड़ा भेद है, அது உங்களுக்கு இருக்கிறதே பெரிய ரகசியமா இருக்கிறது. वो आपके अंदर जो है वो बड़ा भेद है। அப்ப ஆண்டவர் நமக்குள்ளாக சோதரம் உலாவுகிறார். परमेश्वर हमारे अंदर मंडराता அவர் है, நமக்குள்ளாக அவர் வாசம் பண்ணுகிறார். हमारे अंदर निवास அப்ப करता है। இந்த அருமையான காலை வேளையில, इस सुबह के समय இந்த में, ஒரு நாள் வேளையில ये विश्राम के दिन में, கர்த்தர் நம்ம எந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ள வாசமா இருக்கிறது कौन सा भरोसा हमारे अंदर वास करता है, என்று சொல்லி एक ஒரு कहकर சில காரியங்களை हम कुछ बातों को ஆண்டவருடைய உதவியோடு கூட परमेश्वर की सहायता से, பரிசுத்தாவியுடைய துணையோடு கூட पवित्र आत्मा की मदद நாம் से இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். आज हम देखने जा रहे இந்த हैं। வசனமானது, ये वचन जो है, இந்த வார்த்தையானது ये शब्द जो है, நிச்சயமாகவே निश्चय நீங்க கவனமா அதை கேட்கும் பொழுது अगर आप ध्यान से सुनोगे, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் आपके जीवन அந்த में மகிமையின் நம்பிக்கையான அந்த ஆண்டவராகிய கர்த்தர் ये महिमा का परमेश्वर அவர் எப்படி நமக்குள்ள வாசமா இருக்கிறார், कैसे हमारे अंदर वास அந்த करता है, நம்பிக்கை எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி वो भरोसा किस प्रकार அது का है, உங்களால விளங்கிக் கொள்ள முடியும். वो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। வசனத்தை நல்லா குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். वचन को अच्छी तरह से आप मार्क करके உங்க रखिए, வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வேதத்தை படியுங்கள். आपकी बाइबल को उठाकर पढ़िए। சரி, எப்படி இந்த நம்பிக்கை வருகிறது? तो ये भरोसा कैसा आती है? முதலாவதாக पहला, கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे संग रहने से, ஹalleluya. हालेलुया। அதாவது எப்படின்னு சொன்னா, मतलब கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வந்து मसीह की जो मार्ग है, எல்லா நம்பிக்கையிலும் सब भाषाओं में சோதரா நம்பி கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे साथ है। அத கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வந்து मसीही की जो मार्ग எல்லா है, மார்க்கத்திலும் सभी मार्गों ஒரு से சிறந்த ஒரு நம்பிக்கையாக அது காணப்படுகிறது. एक विशेषता है। அது என்னது தெரியுமா? क्या है? கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे साथ என்ன है। நம்பிக்கை இது? क्या भरोसा இப்ப है? இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் आज आप और हम இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டு ये இருக்கிறோம். वचन सुन रहे அப்போ हैं, உங்களுக்குள்ளாக ஒரு நம்பிக்கை तो இருக்கிறது. आपके अंदर एक भरोसा சோதரா है, கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर मेरे साथ है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. உங்களோடு கூட இருப்பதை तो आपके साथ रहने சோதரா से எப்படி மற்ற ஜனங்கள் அதை பார்க்க முடியும் என்று கேட்கீங்களா? दूसरे लोग कैसे देख पाएंगे? அந்த காரியங்கள் வந்து वो कार्य அந்த जो है, ஆவிக்குரிய கண்கள் அவர்களை பார்க்க முடியும். वो आत्मिक नजरों से वो देखेंगे। உலக பிரகாரமானது பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் संसार रीति से आप अगर சோதரா देखोगे, ஆண்டவர் நமக்கு சில நேரங்களிலே परमेश्वर कभी कभी சோதரா உலகத்தாருக்கு முன்பதாக संसारी लोगों के தேவன் सामने, அறியாத ஜனங்கள் முன்பதாக परमेश्वर के अनजान लोगों के சோதரா सामने, மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்யும் பொழுது, अगर जब बड़ा अद्भुत काम करता அடையாளங்களை है, காணும் பொழுது बड़ा आश्चर्य कब அந்த होता है, ஜனங்கள் வந்து வித்தியாசமா பார்ப்பார்கள். तो वो लोग अलग नजरिया से இவங்க देखते எவ்வளவு हैं। ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரா இருக்கிறாங்க. ये लोग कितनी आशीष पाए हैं, எப்படி இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ये लोग को परमेश्वर ने कैसा आशीष எங்க किया। கர்த்தர் அவளோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி परमेश्वर इनके साथ है அதை बोलकर மற்ற ஜனங்கள் கண்டு கொள்ளும்படியாக दूसरे लोग हमें देखने के लिए ஆண்டவர் அதை விளங்க பண்ணுகிறார். परमेश्वर वो प्रकट करता அப்போ है। கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதான அந்த நம்பிக்கை परमेश्वर जो हमारे साथ है, जो भरोसा, அதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும்? हम कैसे समझ पाएंगे? அந்த நம்பிக்கையானது वो भरोसा जो है, அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாகவும் उनकी प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा के द्वारा அவருடைய சுவிசேஷத்தின் மூலமாகவும் उनके सुसमाचार के நாம் द्वारा அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. हम उसे समझ पाएंगे। எப்படின்னு சொன்னா मतलब ஆண்டவர் நமக்கு ஏகப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने बहुत सारा प्रतिज्ञा दिया है। வருஷத்தின் 365 நாட்களும் जो साल के 365 இந்த दिन வேதத்துல ये बाइबल में வாக்குத்தத்தங்களை ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். बहुत सारा प्रतिज्ञा वचन लिखा है। வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றி இருக்கிறார். प्रतिज्ञा को पूरा किया है। சில பேருக்கு ஆண்டவர் कुछ लोग को தனியாக परमेश्वर பேசி இருக்கிறார். व्यक्तिगत में बात किया வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார். और प्रतिज्ञा दिए। சோ அது மாத்திரமல்ல, उतने ही नहीं, சபையில போதகர் மூலமாக कलीसिया में पासवान के அவர் द्वारा வாக்குத்தத்தங்களை மாதம் கொடுக்கிறார். हर महीना प्रतिज्ञा वचन देता அப்படியே है। வாக்குத்தத்தங்களா நம்ம ஆண்டவர் நிறைத்திருக்கிறார். परमेश्वर प्रतिज्ञा वचनों से हमें भरा அப்போ है। அந்த நம்பிக்கையானது वो भरोसा அவர் வாக்குத்தத்தம் மூலமாகவும் प्रतिज्ञा के द्वारा அவருடைய சுவிசேஷத்தின் மூலமாகவும் उनके सुसमाचार के द्वारा நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. हम उसे अच्छी तरह எப்படின்னு पहचानेंगे। சொன்னா कैसे कि யோசுவாவின் புஸ்தகம் यहोशू 1ஆம் அதிகாரம் अध्याय पहला அதில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், उसे 5 वचन में நான் कहता உன்னை है, விட்டு விலகுவதும் இல்லை, मैं न तुझे छोड़ूंगा நான் உன்னை விட்டு கைவிடுவதும் இல்லை. और न मैं तुझे त्यागूंगा। எப்படி மோசேயோடு கூட இருந்தேனே जिस तरह मैंने मूसा के संग அதே था, உன்னோடு கூட இருப்பேன். उसी तरह मैं तेरे भी संग रहूंगा। இது வாக்குத்தத்தங்கள். ये प्रतिज्ञा है। ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, परमेश्वर कहता நான் है, உன்னோடு கூட இருப்பேன். मैं तेरे संग रहूंगा। அதுதான் மகிமை நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு இருப்பது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ராக்கியம், அது ரகசியம். यही महिमा का परमेश्वर भरोसा रखने में यही भेद है। ஏசாயாவில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, ईशाया में कहा है, மலைகள் விலகினாலும் पर्वत चाहे टल பர்வத जाए நிலை और பெயர்ந்தாலும் पहाड़ भी हट जाए, என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் मेरे अनुग्रह तुझसे दूर न என் हो, சமாதானம் பிடிக்க நிலை பெயராம் இருக்கும் என்று मेरी शांति की वाचा तेरे से न हटते உன் हुए மனதுர கர்த்தர் சொல்லுகிறார். तुझ पर तरस खाने वाला प्रभु कहता है। இப்படியாக வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். इस प्रकार अनेक प्रतिज्ञा वचन कह அப்போ அந்த सकेंगे। வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்த ஆண்டவர் ये प्रतिज्ञा दिया हुआ परमेश्वर, நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. हमें एक भरोसा இந்த है। வாக்குத்தத்தத்தை அவர் ये நிறைவேற்றுகிறவர். प्रतिज्ञा वो पूरा भी करता है, நிச்சயமாக அவர் நிறைவேற்றுவார். निश्चय वो पूरा அப்ப அந்த करेगा। நம்பிக்கை நமக்குள்ளாக வாசமா இருக்கிறது. ये भरोसा हमारे अंदर वास करता है। எப்படி? मतलब கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे संग है, கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर आपके संग है। இயேசு சொல்லிருக்கிறாரு, यीशु ने कहा, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் संसार के अंत சகல நாட்களிலும் सारे दिन நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். मैं तुम्हारे साथ हूँ। இதெல்லாம் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள். यही सब उनकी அவர் प्रतिज्ञा என்ன है। சொல்லுதாரு? उन्होंने क्या நீ இந்த कहा, உலகத்துல இருக்கிற வரைக்குமாக, जब तक इस दुनिया में तू है, இந்த உலகத்துல வாசம் பண்ணுகிற வரைக்குமாக, जब तक इस दुनिया में तू वास करता என்னுடைய है, பிள்ளையே, मेरे बच्चे, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, प्रभु के जनों, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். मैं तुम्हारे संग உன்னோடு हूँ। உன்னோடு உன்னோடு இருப்பென்று சொன்னவர்கள், ऐसा कहने, मैं तेरे साथ हूँ बोलने உனக்கு वाले, உதவி செய்வேன் என்று சொன்னவர்கள் मैं तुझे मदद करूंगा அவர்கள் बोलने விலகி वाले, போகலாம். वे लोग हट सकते हैं। ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, ये प्रभु कहता அவர் है, எப்படி சொல்றாரு? क्या कहता है, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் संसार के சகல अंत நாட்கள் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். सदा काल में तुम्हारे அப்ப साथ நம்ம हूँ। கொடுத்திருக்கிற இந்த வாக்குத்தத்தத்தின்படியாக हमें दिया हो गया ये அந்த प्रतिज्ञा, நம்பிக்கை அது வாசமா இருக்கிறது. ये भरोसा हमें अंदर वास करता है। ஹalleluya. हालेलुया। அநேக வாக்குத்தத்தங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம். अनेक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया அந்த होंगे, வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாக वो सभी प्रतिज्ञाओं உங்களை से ஒவ்வொரு நாளும் தைரியப்படுத்தி, आपको हर एक दिन हिम्मत அவர் दिलाकर, தேற்றி, आपको दिलासा அவர் देकर, கரம் பிடித்து आपको हाथ கடந்த थामकर 10 மாதங்களும் பாதுகாத்தார். पिछले 10 महीने आपको संभाला, இந்த 11வது மாதத்திலும் इस 11 महीने में அவர் भी உங்களை சோதரம் பாதுகாப்பதற்கு, वो आपको रक्षक உங்களை करने, வழிநடத்துவதற்கு आपको मार्ग அவர் दिखाने, போதுமானவர். वो बहुत काफी है। அதுதான் அந்த நம்பிக்கை. वही அவர் भरोसा நமக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிறார். हमारे अंदर वास அந்த करता है, வார்த்தை நமக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிறது. वचन हमारे अंदर वास அந்த करता வாக்குத்தத்தத்தை है। கொடுத்த ஆண்டவர் प्रतिज्ञा दिया நீங்க परमेश्वर, நேசிக்க வேண்டும். आप उनसे प्रेम रखना அவருடைய है। வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுகிற வரைக்குமாக जब तक वो प्रतिज्ञा पूरा नहीं होता, அவரை உறுதியா நீங்க பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். उनको स्थिरता से पकड़ அந்த लीजिए। வாக்குத்தத்தங்களுக்கு விரோதமாக वो प्रतिज्ञा के विरुद्ध அது நிறைவேறாதபடிக்கு वो न होते எத்தனை हुए போராட்டங்கள் வரலாம், कितने समस्या आ सकते எத்தனை हैं, நிந்தைகள் வரலாம், कितना निंदा आ எத்தனை सकते हैं, தடைகள் வரலாம், कितना रुकावट आ எத்தனை सकते हैं, விதமான பிரச்சனை எழும்பலாம். कितना प्रकार की समस्या அது उठा எது सकता है। வந்தாலும் अगर जो भी हो, சோதரனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் மாறாதவைகள். उनकी प्रतिज्ञा कभी नहीं பிரச்சனை हटती, எல்லாம் மாறி போகும், समस्या सब हट जाएगी, பாடுகள்லாம் மாறி போகும். तकलीफें सब हट அந்த जाएगी, கர்த்தருடைய வார்த்தையோ लेकिन परमेश्वर का அது वचन ஒருபோதும் அது மாறாதது. कभी नहीं बदलेगा, உங்களுக்கு அது மாறாதது. आपको नहीं बदलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் நேசிக்கிறவர். आपसे प्रभु प्यार करता என்ன है। ரகசியம் நமக்குள்ள அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது. वो भरोसा क्या है, அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள். वो हमें दिया हुआ प्रतिज्ञा है। யாக்கோபை போல தொடர்ந்து போராடி ஜெபியுங்கள். याकूब के जैसा लगातार लड़ते हुए प्रार्थना करो। யாக்கோபு பாருங்க, याकूब, நீரின் ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய जब तक तुम
मुझे आशीर्वाद உம்மை नहीं நான் देगा, போக விட மாட்டேன்னு சொன்னாரு. मैं तुझे जाने नहीं दूंगा அதே बोले। மாதிரி उस प्रकार யாக்கோபை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார், याकूब को परमेश्वर ने आशीष किया, வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்தார், प्रतिज्ञा दिए, அதை அவர் நிறைவேற்றினார். वो उन्होंने पूरा किया, அவருக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. उसके अंदर भरोसा था। கர்த்தர் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார், परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीष என்னுடைய किया பயத்தை है, அவர் மாற்றி இருக்கிறார். मेरे डर को दूर किया என்னுடைய है, எதிர்கால வாழ்க்கையில எனக்கு பயம் இருந்தது, मेरी भविष्य में मुझे भय था, எல்லாவற்றையும் மாற்றி ये सब दूर நான் करके உறுதியாக பிடித்தபடினால मैंने स्थिर पकड़ा, इसीलिए கர்த்தர் அதை நிறைவேற்றார் என்று சொல்லி परमेश्वर ने पूरा किया बोलकर யாக்கோபு சொல்லுவதை பார்க்க முடிகிறது. याकूब कहते हुए हम सुन सकते हैं। யாக்கோபை போல ஜெபிங்க. याकूब के समान प्रार्थना என்ன कीजिए। முதல்ல என்ன பார்த்தோம் என்று சொன்னால், पहला हमने क्या देखा, கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் परमेश्वर हमारे साथ என்ற है, நம்பிக்கை நமக்குள்ளாக வாசமாயிருக்கிறது. ये भरोसा हमारे अंदर रहता है। இரண்டாவதாக दूसरा எது என்று பார்த்தால் क्या है, அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை. उनके जिलाहट की भरोसा। 1 பேதுரு पहला पत्र 1 அதிகாரம் पहला अध्याय 21 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 21 में कहा है, உங்கள் விசுவாசமும் तुम्हारा विश्वास நம்பிக்கையும் और भरोसा தேவன் மேல் இருக்கும்படிக்கு परमेश्वर के अंदर रहने के அவரை लिए, மரித்தோரிலிருந்து जो उसने मरों में से எழுப்பி जिलाकर அவருக்கு மகிமை கொடுத்தார். उनको महिमा दी। நமக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது? हमारे अंदर क्या विश्वास அந்த होना மகிமை है, நம்பிக்கை என்ன இருக்கிறது? उस महिमा की आशा क्या அவருடைய है, உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை. उनकी जिलाहट की भरोसा। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து हमारे यीशु मसीह அவர் குற்றமற்ற, वो निष्कलंक மாசற்ற और जो कभी ना गलत किया हुआ, ஆட்டுக்குட்டி ஆகிய वो भेड़ जो है கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே उसी का बहुमूल्य लहू से நாம் மீட்கப்பட்டு இருக்க அறிந்திருக்கிறீர்களே आप छुड़ाए गए करके आप जानते என்று हो। பேதுரு சொல்லுகிறார். जो पतरस कहता நம்முடைய है, இரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டு இருக்கிறோம். हम उसके लहू से छुटकारे அவருடைய हुए, இரத்தம் குற்றமற்ற இரத்தம், उसका लहू निर्दोष है, மாசற்ற இரத்தம். निष्कलंक है। அந்த இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டோம் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. उस लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए करके நீங்க जानते அப்படிதான் हैं। விசுவாசிக்கிறீங்க. क्या आप भी वही विश्वास करते அவர் हैं? இரத்தத்தால் நீங்க மீட்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள். उसके लहू से आप छुड़ाए गए। இயேசு சிலுவையில் சிந்திய இரத்தத்தினாலே, यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया हुआ அவருடைய लहू के வெளியேறப்பட்ட कारण, இரத்தத்தினாலே उसके बहुमूल्य लहू के நாம் कारण மீட்கப்பட்டு இருக்கிறோம். हम छुड़ाए गए। அவர் நமக்காக பாடுபட்டு, वो हमारे लिए दुख उठाकर, அடிக்கப்பட்டு, मारे जाकर, ரத்தம் சிந்தி लहू बहाकर, நமக்காக அவர் மரித்திருக்க விசுவாசிக்கிறோம். वो हमारे लिए मरा करके विश्वास அவர் करते மரித்து हैं। அடக்கம் பண்ணப்பட்டு वो मरकर दफनाकर அவர் 3ஆம் நாளிலே உயிர்த்தெழுந்து तीसरे दिन जी उठकर, இயேசு மரித்தோரிலிருந்து यीशु मसीह मरियों में से உயிர்த்தெழுந்தலினாலே जी उठा, इसीलिए நமக்கும் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இருக்கிறது. हमें भी उसी प्रकार का भरोसा है। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் மரித்தோரிலிருந்து वो मृत्यु से அவர் உயிர்த்தெழுந்ததனாலே जी उठा, நமக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது. हमारे अंदर भी भरोसा இந்த है। உலகத்திலே हाँ, संसार में எத்தனை கல்லறைகள் இருக்கலாம், कितने सारे कब्रिस्तान எத்தனை होंगे, மகான்கள் சோத்திரம் இறந்திருக்கலாம், कितने महान लोग मरे हुए எத்தனை हैं, பரிசுத்தவான்கள் இறந்திருக்கலாம். कितने पवित्र जन मरे हैं, ஆனால் फिर भी எந்த ஒரு மனிதனும் உயிர்த்தெழுதப்படவில்லை, कोई भी मनुष्य अभी तक जिंदा नहीं எந்த उठा, மகானும் உயிர்த்தெழவில்லை. कोई महान पुरुष भी जिंदा ஆனால் नहीं ஆண்டவர் उठा। இயேசு கிறிஸ்து கல்லறையை यीशु मसीह का जो कब्र है, இன்றைக்கு நான் பார்க்க போவோம் என்று अगर சொன்னால், आज भी देखने जा அவருடைய रहे हैं, கல்லறையானது उनकी कब्रिस्तान जो है, இன்றைக்கும் திறந்திருக்கிறது. आज भी खुली पड़ी है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு மரித்தோரிலிருந்து यीशु मसीह मरो में से உயிர்த்தெழுந்ததினாலே जी उठा, इसलिए நமக்கும் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உண்டு. हमें भी उसी प्रकार का भरोसा है। இயேசு சொன்னாரு, यीशु ने कहा, மரித்தேன், मैं मरा, ஆனாலும் फिर भी இதோ சதா கால உயிரோடு இருக்கிறேன். ज्ञान युग में जीवित हो। என் ஆண்டவர் சொல்ல இருக்கிறார். परमेश्वर ने அவரே कहा, தான் மரித்தேன், वो मैं मरा हूँ, ஆனா மரித்தாலும் கூட लेकिन मैं मरा हूँ, அவர் இன்றைக்கும் लेकिन आज அவர் भी உயிரோடு இருக்கிறார் मैं जी उठा என்ற हूँ। நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும். ये भरोसा हमारे अंदर होना அதான் अवश्य है। நம்பிக்கை. यही भरोसा ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு மனிதனுடைய एक मनुष्य का மரணத்தின் मृत्यु की இனிமையான பகுதி என்ன? एक जो आनंद की भाग क्या है, அவனுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது? उसमें क्या भरोसा है, என்ன தெரியுமா? क्या है? அந்த உயிர்த்தெழுந்த वो जी उठा மீட்பரை और छुटकारा को முகமுகமா நம்ம தரிசிப்போம். मैं आमने सामने देखूंगा। அதுதான் நம்பிக்கை நமக்கு. वही भरोसा है ஆனா हमारे இது लिए, இனிமையான ஒரு நம்பிக்கை. वही एक मिठास का உயிர்த்தெழுந்த अनुभव மீட்பரை जो जिलाया हमें परमेश्वर, முகமுகமா நம்ம தரிசிப்போம். हम आमने सामने அந்த देखेंगे। நம்பிக்கை நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். वो भरोसा हमारे अंदर होना அதைத்தான் अवश्य பவுல் है। சொல்லுகிறார். पौलुस कहता है, அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருப்பது ரகசியம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वो भरोसा जो हमारे अंदर है वही बड़ा நீ
नहीं है। இது தேவனை அறியாதவர்களுக்கு, ये जो परमेश्वर के अनजान है, சரியான ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு जो सही ढंग से उद्धार नहीं இந்த पाए, காரியங்கள் புரியாது. बराबर से नहीं समझेंगे। அதாவது ஒரு மனிதன் கண்டிப்பா மரிக்க வேண்டும். एक व्यक्ति जरूर मरना அவன் है, மரித்த பிறகு मरने के बाद அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. उसके ऊपर एक भरोसा होती है। ஹalleluya. हालेलुया। உங்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது. आपको भी भरोसा அந்த है, இயேசுவை நான் முகமுகமா நான் தரிசிப்பேன். वो यीशु को मैं आमने सामने ஒரு நடந்த देखूंगा। சம்பவத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். पूरी घटना को आपको कहते ஒரு हैं। போதகரின் மகள் एक पासवान की बेटी சோதர ஸ்கூல்ல வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். स्कूल में काम करती थी, சோதர நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள், एक अच्छी थी, தேவனுக்கு பயந்தவர்கள், परमेश्वर की भय मानने ஆண்டவர் वाली, மேல பரிபூர்ண விசுவாசம் வைத்தவர்கள். परमेश्वर के ऊपर पूर्णता சோதர विश्वास करने वाली, ஸ்கூலிலேயே उसी स्कूल நல்ல में ஒரு பேர் வாங்கியதனால अच्छा नाम ஒரு लिया போதகரின் மகள் इसलिए एक पासवान की बेटी திடீரென்று பார்த்தா अचानक से அவங்களுக்கு ஒரு பயங்கர வியாதி தாக்கினது. उसे एक भयंकर बीमारी आ நான் गई। கதை சொல்லவில்லை, एक कहानी नहीं है, நடந்த சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன். वही घटना कहते हैं। திடீரென்று வியாதி தாக்கினதுனால अचानक ये बीमारी आने की சோதர वजह से எல்லா ஆஸ்பத்திரியில போய் பார்த்தார்கள். सब अस्पताल में जाके அந்த चेक வியாதியினால किए, சுகம் கிடைக்க முடியவில்லை. उस बीमारी से वो ठीक नहीं हो पाई। கடைசியாக आखिरी में எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போறாங்களோ जो अस्पताल में அவங்க जाते थे, எல்லாரும் கைவிட்டு விட்டார்கள். उस सब लोग ने हाथ छोड़ இன்னும் दिए, அவங்களை சுகப்படுத்த முடியாது. अभी वो ठीक नहीं कर உங்க पाएंगे। மகளை வீட்டுக்கு கொண்டு போக என்று சொல்லி आप अपने बच्चे को घर ले சோதர जाओ, மகளை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள். मेरी लड़की को अपने घर ले அவங்க आए। ஊழியக்காரர் இருந்தபடினாலே वो सेवक थे அவங்க इसीलिए நினைத்தாங்க उन्होंने सोचा பரவாயில்லை, चलेगा, வாலிப மகள், जवान बेटी है, சொந்த திருமணம் முடியாதவள், उसकी ब्याह नहीं हुई, மருத்துவ உலகம் கைவிட்டு விட்டதே, वो जो डॉक्टर उनके हाथ छोड़ சரி दिए, பரவாயில்லை என்று சொல்லி चलेगा बोलकर அவர்கள் என்ன செய்தாண்டு சொன்னால் उन्होंने क्या அந்த किया, மகளை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து उस விட்டார்கள். बेटी को घर पर அவங்க लाए, நினைச்சா வீட்டுல நம்ம ஜெபிக்கலாம் வைத்து घर पर रखकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। அவர் போதரா இருந்தபடினாலே वो पासवान होने के தெரிந்த कारण ஊழியக்காரர் வந்து ஜெபித்தார்கள். जो जान पहचान जो पासवान आए, சபையின் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைக்காக ஜெபித்தார்கள். कलीसिया के विश्वासी लोग प्रार्थना किए। சோதரம் ஆனாலும் பாருங்க फिर भी ஒரு देखिएगा, நாள்ல एक दिन திடீரென்று சொல்லி अचानक से அந்த மகள் वो बेटी தன்னுடைய தாயை அழைத்தாள். अपनी माँ को बुलाई। அம்மா சோதரம், அதாவது வானம் அதாவது பரலோகம் திறந்து இருக்கிறது, माँ आकाश का द्वार मेरे இல்ல लिए खुला வானம் है, திறந்து இருக்கிறது, द्वार खुला है, இரண்டு தூதர்கள் दो स्वर्गदूत சோதரம் என்னை கொண்டு போவதற்காக मुझे ले जाने के लिए அவர்கள் வருகிறார்கள். आ रहे हैं। என்னுடைய மரண பகுதிக்குள்ளாக வந்திருக்கிறேன், मैं अभी मृत्यु के आखिरी स्टेज में ஒரு हूँ, கடைசி பகுதிக்குள்ள வந்திருக்கிறேன். मैं आखिरी छोर पे खड़ी हूँ। சோதரம் அந்த தாயாருக்கு ரொம்ப ஒரு கடினமா இருந்தது. माँ को बहुत तकलीफ था, இவ்வளவு ஜெபித்தோமே, इतना प्रार्थना இப்படி किया, மகள் சொல்லிதாண்டி சொல்லி मेरी बेटी ऐसी कह रही है அவ बोलकर, சொன்னா वो कही அத வானம் திறந்து இருக்கிறது, आकाश खुली पड़ी है, ரெண்டு தூதர்கள் வர்றாங்க, स्वर्गदूतों को आ என்ன रहे हैं, பரலோகத்துக்கு கொண்டு போறாங்க, मुझे स्वर्ग ले जा रहे என்னுடைய हैं, மரணம் நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறது. मेरी मृत्यु में அது पास எனக்கு में ஒரு ஆசை पहुंचे, இருக்கிறது, मेरी इच्छा है, நீங்க அதை நிறைவேற்றினா தாயிடம் கேட்கிறாள். पूरा करेंगे क्या पूछे। அவருடைய தாய் சொன்னால் சரிமா என்ன ஆசைன்னு சொல்லுன்னு சொல்லும் பொழுது तुरंत उसकी बेटी ने माँ बोलेगी क्या तेरी அவங்க इच्छा, சொல்லுதாங்க, उन्होंने कहा சோத்ரம் நான் இறந்து விடுவேன். मैं जो मर जाऊंगी, அந்த மகள் சொல்லுகிறார், बेटी कहती है நான் இறந்து விடுவேன், मैं मर நான் जाऊंगी, பரலோகத்துக்கு போய் விடுவேன். मैं स्वर्ग चली जाऊंगी, ஆனால் लेकिन அந்த இறந்த நாள்ல जिस दिन मैं मरूंगी, அடக்கம் பண்ணுகிற நாள்ல जिस दिन दफना किया நீங்க जाएगा, வந்து எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டும், आने वाले सबसे कहिएगा, நீ உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், आपको भी कहती हो, ஒருவரும் कोई भी சோத்ரம் நீங்க அழக்கூடாது. नहीं रोना चाहिए, ஆமென். हमें ஒருவன் நீங்க அழக்கூடாது. कोई भी नहीं रोना चाहिए, சோத்ரம் நான் கண்ணம் மூடுவேன், मैं आंखें बंद சோத்ரம் करूंगी, நீங்க ஒருவர் அழக்கூடாது. आप लोग नहीं रोना है, பாருங்களே நீங்க சொல்லிட்டாங்க. आने वालों को सबको कह அப்படி दीजिए, சொல்லிட்டு ऐसा कहकर அடுத்த கொஞ்ச நிமிஷத்துக்குள்ளாகவே कुछ ही मिनट அவள் में கண்ணை மூடினாள். अपनी आंखें बंद சிரித்த की, முகத்தோடு கூட खुशी खुशी அவள் से அந்த பரலோகத்தை அவள் கடந்து वो சென்றாள். स्वर्ग चली गई। அந்த 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 சோத்ரம் அடக்க ஆராதனையானது वो दफनाने का जो ஒரு सेरेमनी திருமண था, ஆராதனை போல एक विवाह की जैसा, அந்த மகளுடைய அடக்கம் செய்தாண்டு சொல்லி அந்த காரியத்தை நான் கேட்டது எனக்கு நினைவு இருக்கிறது. वो बेटी को जिस तरह शादी में करते उस प्रकार के उसका पिनरोल किया। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவா சொன்னாரு, यीशु ने कहा என்னை விசுவாசிக்கிறவன் जो मुझ पर विश्वास அவன் करता है மரித்தாலும் அவன் वो பிழைப்பான். मरेगा तो भी जिंदा அந்த रहेगा। நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்க वो வேண்டும். भरोसा हमारे अंदर होना என்ன अवश्य நம்பிக்கை है। என்று क्या भरोसा? அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கை. उसकी जिलाहट की பாருங்க, भरोसा। வாலிப மகள் जवान है, சோத்ரம் திருமணம் ஆகிற வயது, उसकी शादी की उम्र है, உலகத்தில் எத்தனை காரியங்களை பார்க்க வேண்டும். संसार में कितने कार्यों को देखना ஆனால் है, फिर भी சிரித்த முகத்தோடு கூட खुशी खुशी से அந்த பரலோகத்துல वो स्वर्ग में அவள் கடந்து போய்விட்டாள். वो चली गई। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु की உங்க जनों, நம்பிக்கை
நம்பிக்கை இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது? आपकी भरोसा कैसी है? நாம் இன்று மரித்தால் ஆத்துமா எங்கே போகும்? अगर आज मरेंगे तो हमारी आत्मा कहाँ அந்த जाएगी? உயிர்த்தெழுந்த वो जिलाहट की மீட்பரை आत्मा, वो चुनाव को முகமுகமாக நம்ம தரிசிக்க வேண்டும். जिसे हम अपने आप को उससे देखना है। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவதாக तीसरा, என்ன அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது? क्या भरोसा होना आवश्यक है? இயேசுவின் வருகையில் நான் காணப்படுவேன் என்ற நம்பிக்கை. यीशु मसीह के आगमन में मैं जाऊंगा करके ये भरोसा। எபிரேயர் इब्रानियों 3 அதிகாரம் अध्याय 3 அந்த 14 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसका 14 वचन में நாம் कहा है, ஆரம்பத்தில் கொண்ட நம்பிக்கை முடிவு பரியந்தம் உறுதியா பற்றி கொண்டு இருப்போமானால் जो प्रथम में भरोसा जो अंत तक हम दृढ़ता से स्थिर रहेंगे तो அங்க என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? हमें क्या कहा நாம் है? ஆரம்பத்திலே हम प्रथम से சோத்திரம் கொண்டதான पाए हुए நம்பிக்கை முடிவு பரியந்தமும் भरोसा को अंत तक உறுதியாக பற்றி கொண்டு இருப்போமானால் दृढ़ता से स्थिर रहेंगे। கிறிஸ்துவோடே கூட मसीह के साथ, நாம் அவரோடு கூட मसीह के நான் இருப்பேன் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. आप भागीदार बनेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। எப்படின்னு சொன்னால் मतलब இயேசுவின் வருகையில் காணப்படும் நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும். मसीह के आगमन का भरोसा होना अवश्य है। ஒரு நாள் एक दिन எக்கால சத்தம் தொனிக்கும். जो अपुतुर ही फूकी அப்பொழுது जाएगी, கர்த்தருடைய வருகையில परमेश्वर के आगमन में அவரோடு கூட मैं उसके நாம் साथ காத்திருந்து हम रहकर நாம் இமை பொழுதிலே हम क्षण भर அந்த में மகிமையின் மேல் மகிமையை நாம் அடைந்து மறுரூபமாக ஆகப்படுகிறோம். महिमा में महिमा होकर हम रूपांतर होंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு சீக்கிரம் வர போகிறார். यीशु मसीह जल्दी आने அவருடைய वाला வருகை है। மிகவும் சமீபமா இருக்கிறது. उसकी आगमन बहुत निकट அப்ப है। நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சொன்னா तो हमें क्या भरोसा உங்களுக்கு அந்த है? நம்பிக்கை இருக்கிறதா? आपको भरोसा है? இயேசுவின் வருகையில यीशु मसीह के நான் आगमन में காணப்படுவேன். मैं देखे जाऊंगा। அதுதான் 1 கொரிந்தியர் इससे पहला कुरिन्थियों 3 அதிகாரம் अध्याय 3 18 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 18 वचन में कहा है, நாம் எல்லாரும் हम सब திறந்த முகமாய் हम खुले जो मुख पर கர்த்தருடைய மகிமையின் கண்ணாடியில காண்கிறது போல கண்டு जिस तरह में हम आईने में देखते उस प्रकार हम देखेंगे। ஆவியாயிருக்கிற जो आत्मा அந்த परमेश्वर है, சாயலாகத்தானே वही परमेश्वर को மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். महिमा में महिमा पाकर हम रूपांतर होंगे। ஹalleluya. हालेलुया। மகிமையின் மேல மகிமை அடைகிறோம். महिमा में हम महिमा पाएंगे। அந்த இயேசுவோடு கூட यीशु के அந்த साथ வருகையில காணப்படும் பொழுது हम उस आगमन में ठहरे சோதர जाएंगे। அவரோடு கூட तब நாம் மகிமை அடைந்து हम महिमा होकर மறுரூபப்படுகிறோம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. हम रूपांतर होंगे करके कहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। 1 யோவான் पहला यूहन्ना 3 அதிகாரம் तीसरा அந்த अध्याय 2 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 2 वचन में कहता है, பிரியமானவர்களே, हे मेरे प्रियो, இப்பொழுது अब தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். अब हम परमेश्वर की संतान இனி हैं। இனி எவ்விடம் இருப்போம் என்று இன்னும் அறிய வெளிப்படவில்லை. अभी हम कहाँ रहेंगे करके अब तक प्रकट नहीं हुआ। ஆகிலும் इसीलिए அவர் வெளிப்படும் பொழுது जब वो प्रकट होंगे, அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே वो जिस प्रकार है நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் हम उसे देखेंगे, அவருக்கு ஒப்பா இருக்கோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். हम उसके समान होंगे करके जानते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அவருக்கு ஒப்பா இருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். हम उसके समान होंगे। அவர் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவை அவனும் इस प्रकार की भरोसा रखने वाले அவர் हैं, சுத்தமுள்ள இருக்கிறது போல जिस तरह वो शुद्ध है, தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறார். अपने आप को शुद्ध करता है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த உயிர்த்தெழுந்த அதாவது சோதரம் இயேசுவின் வரி எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கள் जो कुछ अपना परमेश्वर भरोसा करते कि जिलाहट இன்னும் அவரோடு में கூட நான் அந்த பரலோக இருக்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கள் जो उसके साथ में भी स्वर्ग में रोगा करके जो भरोसा रखते அவர் हैं, பரிசுத்தமுள்ளா இருக்கிறது போல जिस तरह वो पवित्र है, தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுன்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. अपने आप को पवित्र कर ले करके कहा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கைக்கு, एक पवित्रता ஒரு जीवन के लिए, தேவனுக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கைக்கு परमेश्वर का प्रिय जीवन के அவர்கள் தங்களை लिए அர்ப்பணித்துக் கொள்வார்கள். वे लोग अपने आप को अर्पण தங்களை करेंगे, சுத்திகரித்துக் கொள்வார்கள். अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। யோவான் यूहन्ना 14:1-3 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 14 अध्याय पहला से 3 वचन உங்கள் है, இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக तुम्हारा मन व्याकुल न हो, என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள். मुझ पर विश्वास रखो தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள். और परमेश्वर पर विश्वास என் रखो। பிதாவின் வீட்டிலே मेरे पिता के घर पर அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. अनेक स्थान है, அப்படி இல்லாதிருந்தும் अगर नहीं होता நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன். मैं तुमसे कह देता, ஒரு ஸ்தலம் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். एक स्थान तैयार करने நான் जाता போய் हूँ, உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு जाकर तैयार करके आऊंगा, நான் இருக்கிற இடத்திலேயே
நீங்களும் இருக்கும்படி मैं जिधर रहता हूँ वहाँ तुम्हें भी रहने நான் जाने மறுபடியும் வந்து फिर आकर உங்களிடத்தில் சேர்த்துக் मैं கொள்ளுவேன். अपने पास ले இது जाऊंगा, அவர் சொல்லுகிறார். ऐसा कहता है ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह। அவர் மரித்த பிறகு मृत्यु के बाद அவர் பரலோகம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார். स्वर्ग उठा लिए அந்த गए। பரலோகம் எடுத்துக்கொள்ளும் சமயத்துல स्वर्ग उठा ले जाने के समय சீசருடைய पर உள்ளம் கலங்கினது. शिष्य का मन व्याकुल रहा, சீசருடைய இருதயமானது கொஞ்சம் பாதிப்படைந்தது. शिष्य का मन थोड़ा व्याकुल हो ஏன் गया என்று சொன்னால் क्योंकि இயேசுவோடு கூட அவர்கள் இருந்தவர்கள், यीशु के संग रहने वाले, இயேசுவோடு கூட ஊழியம் செய்தவர்கள், यीशु के साथ सेवा करने இயேசு वाले, பரலோகம் போறார் என்று சொன்னவுடனே अभी यीशु स्वर्ग ले जा रहे இப்ப யார் करके நம்மோடு கூட இருப்பார்கள்? अभी हमारे साथ कौन रहेगा, நமக்கு யார் ஆறுதல் செய்வார்கள்? हमारा दिलासा देने वाला எப்படி कौन है, அற்புதம் நடக்கும் என்று சொல்லி अब किस तरह अद्भुत काम அவருடைய होगा இதயம் बोलकर கொஞ்சம் கலங்கினது. उनका हृदय थोड़ा व्याकुल நம்முடைய हुआ, எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி हमारा भविष्य कैसा होगा அவர்கள் करके பயந்தார்கள். वे लोग डरे। இயேசு சொல்றாரு, यीशु कहता உங்க है இருதயம் பயப்படாதங்க, हमारा मन व्याकुल न நான் हो, எங்கே இருக்கிறேனோ मैं जहाँ पर हूँ உங்களையும் அங்கே நான் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, நான் மறுபடியும் வருவேன், मैं फिर आऊंगा, மறுபடியும் வருவேன் சொல்லி இருக்கிறாரு. मैं आऊंगा बोले, அவர் சீக்கிரம் வர वो போகிறார். जल्दी आने वाला அவர் है, உங்களை சேர்த்துக் கொள்ளுவார். वो आपको ले जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्यारे प्रभु के இந்த जनों, கிறிஸ்துவின் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் வாசம் பண்ண இருக்கிறாரா? वो महिमा का परमेश्वर क्या आपके अंदर रहता அந்த है? நம்பிக்கை எனக்கு உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ளீர்கள் என்று சொன்னால் अगर उस परमेश्वर को स्थिरता से पकड़े இந்த होंगे तो எதிர்காலத்துக்கு உங்களுக்கு பயம் இல்லை. आपको भविष्य के बारे में कोई डर நீங்க नहीं எதிர்காலத்தை रहेगा, மகிழ்ச்சியோடு கூட நீங்க அதை எதிர்கொள்ளலாம். आप उसे आमने सामने मिल सकते हैं। எப்போதும் कब जब भी பரலோகத்தில் உங்களுக்காக स्वर्ग आपके लिए வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையை குறித்து जो रखा गया भरोसा, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும். परमेश्वर को धन्यवाद देना அந்த है। உங்களோட நம்பிக்கை இருக்கிறதா? क्या आपको भरोसा है? பரலோகம் எனக்கோ இடத்தாண்ட வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपको जगह रखा தேவனை है, நீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும். परमेश्वर को आप धन्यवाद देना என்னுடைய चाहिए। பெயர் मेरा नाम ஜீவ புஸ்தகம் எழுதி இருக்கிறது. जीवन की पुस्तक में लिखा है, ஜீவ எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. जीवन की पुस्तक में लिखा வாடாத है கிரீடங்கள், जो नाशवान मुकुट, நீதியின் கிரீடங்கள், धर्म का मुकुट, சோதரம் பரலோகத்தின் சுதந்திரங்கள் உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றதானே स्वर्ग में रखा गया हर एक चीजें, ஒரு நம்பிக்கை, एक भरोसा, ஒரு மகிழ்ச்சி एक आनंद உங்களுக்காக எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். आपके अंदर हमेशा होना अवश्य है। ஹalleluya. हालेलुया। அதை நீங்க மறந்து விடக் वो கூடாது. कभी मत भूलिएगा। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, என் நம்பிக்கை என்று சொன்னால் क्या भरोसा, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது जब यीशु मसीह आएंगे நானும் मैं भी அவரோடு கூட उसके அந்த साथ பரலோகத்தில் நான் போய் சேருவேன். स्वर्ग में मैं भी जाऊंगा बोलकर। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க ஒருவேளை शायद உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके இது जीवन ஒரு में கலக்கத்தோடு இருந்து கொண்டு இருக்கலாம். कुछ तो व्याकुल में होंगे, உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்கு நீ கவலையோடு இருந்து கொண்டு இருக்கலாம். संसार के कार्य के बारे में आप चिंतित ஏதோ होंगे, ஏதோ உங்களுக்கு காரியங்களை பாதித்துக் கொண்டு இருக்கலாம். कुछ तो बातें जो आपको परेशान करती ஆனா உண்மையான होंगी, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, लेकिन सच्चाई प्रभु के தேவனை लोग जो விசுவாசிக்கிறவர்கள் प्रभु पर विश्वास करते சோதரன் हैं, கிறிஸ்துவானவர் मसीह जो है மகிமையின் महिमा की நம்பிக்கையாக भरोसा का உங்களுக்கு இருப்பதே அந்த ரகசியம். आपके अंदर रहता है, वही बड़ा भेद है। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்று காரியத்தை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். 3 प्रकार के कार्य देखे। கர்த்தர் என்ன நம்பிக்கை என்று சொன்னால் क्या भरोसा है? கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे संग रहता है। இரண்டாவதாக दूसरा, அவருடைய உயிர்த்தெழுதின் நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது. उसकी जिलाहट की भरोसा हमारे अंदर है। மூன்றாவதாக तीसरा, இயேசுவின் வருகையிலே यीशु मसीह के आगमन में காணப்படுவேன் என்ற நம்பிக்கை. मैं मिलूंगा करके वो இந்த நம்பிக்கை भरोसा। உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறதா? क्या ये भरोसा आपके अंदर है? அந்த மகிமையின் ஆண்டவர் वो महिमा का அவர் परमेश्वर உங்களுக்குள்ள இருப்பது आपके अंदर जो அந்த है, ரகசியம். वही बड़ा भेद है। ஹalleluya. हालेलुया। இதைத்தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் यही प्रेरित पौलुस கொலோசிய சபைகளுக்கு, कुलुस्सी कलीसिया அவங்களுடைய में விசுவாசிகளுக்கு, वहाँ के विश्वासियों को, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर की இந்த जनों को காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். इस कार्य बातें बताता है। ஹalleluya. हालेलुया। இதை குறித்தும் கலங்காதங்க, किसी के बारे में चिंता मत இதை कीजिए, குறித்தும் பயப்படாதங்க. किसी भी चीजों की डरो मत, அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசிங்க. उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास அவர் कीजिए। எனக்காக உயிர்த்தெழுந்த விசுவாசிங்க. वो मेरे लिए நாளில एक நான் दिन இயேசுவை मैं यीशु को முகமுகமாக தரிசிப்பேன். अपने आमने सामने मिलूंगा, அவரோடு கூட मैं उसके நான் साथ வரி எடுத்துக்கொள்வேன் நம்பிக்கையோடு கூட आत्मन में उठा लिए இந்த जाऊंगा। உலகத்துல इस दुनिया में சந்தோஷமா வாழுங்க, खुशी से जिएगा, பரிசுத்தமாக ஜீவிங்க, पवित्र से जियो, ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கையை परमेश्वर का प्रिय कार्य அமைத்துக் கொள்ளுங்க. अपने आप को समेट लीजिए। கர்த்தர் தாமே परमेश्वर இந்த வார்த்தையின் மூலமாக इन वचनों के द्वारा உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.
आपको आशीष करे, உங்களை பலப்படுத்துவாராக, आपको बलवंत करे, உங்களை தைரியப்படுத்துவாராக. आपको हिम्मत दिलाए। நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்கலாமா? क्या अब हम प्रार्थना करें? இருக்கிற இடத்திலேயே जहाँ पर आप बैठे हो தங்களை தாழ்த்தி अपने आप को झुकाकर, தலைகளை வணங்கி अपने सिर நாம் झुकाकर ஜெபிக்க போறோம். हम प्रार्थना करने जा रहे ஆண்டவர் हैं। நம்முடைய ஜெபத்தை அவர் கேட்கிறவர். परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தாலும் பரவாயில்ல, आप कोई भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना எந்த हो, ஒரு காரியத்தில் நீங்க சோர்ந்து போனாருன்னா கர்த்தர் உங்களை உயிர்ப்பிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். कोई भी कार्य में आप अगर निराश में तो प्रभु आपको जिलाएंगे। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता தேவன் है நம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को தெரியப்படுத்த சித்தமானா उसने प्रकट होना चाहा। கிறிஸ்துவானவர் मसीह जो है மகிமையின் நம்பிக்கையாக महिमा की आशा உங்களுக்கு இருப்பதே அந்த ரகசியம். आपके अंदर जो रहता है वही बड़ा அவர் भेद है। உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார், वो आपके अंदर है, அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார், वो आपके संग है, உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார். वो आपके अंदर रहता है। கலங்காதீங்க, चिंता मत कीजिए, கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा நாம் है। ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें। எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता आपको இந்த धन्यवाद। அருமையான வேளைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद இந்த देते हैं। நாளிலும் கூட आज के दिन में ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையர் உங்களோடு நீர் பேசி इन இருக்கிறீர். वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की எங்களோடு है। ஆண்டவரே நீர் இடைப்பட்டு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. आपने हमसे मिले प्रभु, ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாக आपने हमें दिया हुआ उस प्रतिज्ञा की நாங்கள் वचन விசுவாசிக்கிறோம். हम विश्वास நீர் करते हैं। எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்று சொல்லி आप हमारे संग है कबूल। ஆண்டவரே இரண்டாவதாக दूसरा, சோதரம் நீர் ஆண்டவரே சோதரம் மரித்தோரிலிருந்து आप मरो में से உயிர் தெழுந்திருக்கிற விசுவாசம் நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. जिलाए करके वो भरोसा है प्रभु। மூன்றாவதாக तीसरा, சோதரம் அதாவது நாம் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்போ நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. मैं आगमन में उठा लिए जाऊंगा करके ये भरोसा है। நீங்க வரும் பொழுது जब आप आओगे நாங்களும் हम भी உம்மோடு கூட வருவோம் நம்பிக்கை இருக்கிறது. आपके साथ आएंगे करके भरोसा है। எனவே சொல்லி ऐसा कहकर தேவதம்மை ஜெபிக்கலாம். प्रार्थना करेंगे। அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर जो भरोसा रखे हैं, உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக आप ஜெபிக்கிறேன். उन्हें आशीष அவங்களை कीजिए, பலப்படுத்தும்படியாக उन्हें आप ஜெபிக்கிறேன். बलवंत கிறிஸ்துவின் कीजिए। அன்பை விட்டு मसीह के प्रेम உடைய से பிள்ளைகளை எதுவும் பிரிக்காதபடிக்கு आपके बच्चों कोई अलग न உடைய कर பிள்ளைகள் पाए, உறுதியாக உண்மை பிடித்துக் கொள்ளத்தக்கதாக आपको स्थिरता से உங்கள் पकड़ने, வைத்த நம்பிக்கை அவர்கள் இழந்து போகாதபடிக்கு आप पर रखा हुआ भरोसा का न खोते உங்கள் வைத்த हुए, விசுவாசத்தை இழந்து போகாதபடிக்கு आप पर रखे हुआ विश्वास को न வசனம் खोते சொல்லப்பட்டு हुए। இருக்கிறதே वचन कहता है முடிவு பரியந்தமும் अंत तक நிலை நிற்பவனே जो स्थिर है ரட்சிக்கிற வசனத்தின்படியாக वही उद्धार உடைய पाएगा। பிள்ளை உமக்காக நிலைத்து நிற்கணும் ஆண்டவரே. अंत तक खड़े रहने के அந்த लिए நம்பிக்கை வீண் போகாதபடிக்கு वो भरोसा व्यर्थ न உங்களை जाते हुए ஆசீர்வதிக்கும்படியாக आप ஜெபிக்கிறேன். अनेक को आशीष कीजिए, எல்லாரையும் பலப்படுத்தணும். सभी को बलवंत எல்லா कीजिए, தேவைகளை சந்தித்து கொடுங்க. सभी जरूरतों को पूरा कीजिए, மனபாரங்கள் மாறட்டும். सब बोझ இருக்கிற हटाइए, வியாதிகள் பலவீனங்கள் மாறட்டும். सब बीमारियों को दूर எல்லா கொள்ளை कीजिए, நோய்களுக்கும் सब महामारियों से, பொல்லாடை கண்களுக்கும் बुराई नजरों இந்த பிள்ளை से விலக்கி நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். अपने बच्चों को सुरक्षित தேவ कीजिए, கரம் இருக்கட்டும். परमेश्वर का हाथ உடைய रहे, வல்லமை தாங்கட்டும். आपका सामर्थ्य रहे, தைரியப்படுத்தும் ஐயா. हिम्मत दिला दीजिए, உயர்த்துங்க. ऊंचा कीजिए வேலையில कामों में, அவங்க செய்கிற பிசினஸ்ல करने वाले बिजनेस பிள்ளை में உயர்வு கட்டளையிடும்படியாக उन्हें ஜெபிக்கிறேன். आप ऊंचा இந்த दीजिए। நாட்களில आज के दिन में பிசினஸ் இல்லாதபடிக்கு बिजनेस जो नहीं है இருக்கிற प्रभु, பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ऐसा रहने वालों के लिए நல்ல प्रार्थना करते பிசினஸ் हैं, வளரட்டும் ஐயா. अच्छा बिजनेस बढ़े, விருத்தி அடையட்டும் वो ஆண்டவரே. लोग बढ़ोती हो, வேலையில விருத்தி அடையட்டும். कामों में बढ़ोती हो, தேவகரம் தொடர்ந்து தாங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर का हाथ लगाता रहे, சபையெல்லாம் திறக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. इससे कलीसिया खुले, உம்மை இணைந்து ஜெபிக்க கிருபையில தாங்க. आप परमेश्वर मिलकर प्रार्थना करें, எல்லா मदद कीजिए, தடைகளை மாற்றுங்க. सारी रुकावट दूर இந்த தானா कीजिए। மாவட்டத்துல इस थाना शहर இந்த में, மகாராஷ்டிராவுல इस महाराष्ट्र में, இந்தியாவுல भारत देश எழுப்புதல் में வரும்படியாக एक ஜெபிக்கிறேன். बड़ा बेदारी आए, எல்லா தலைவர் ரட்சிக்கப்படட்டும். सभी नेता उद्धार உம்மை पाए, ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் ஐயா. आपको परमेश्वर ஒரு பெரிய स्वीकार, மாற்றங்கள் கடந்து வரும்படியாக बड़ी ஜெபிக்கிறேன். बदलाव को दीजिए। ஜெபத்தை கட்டி நன்றி. प्रार्थना सुना धन्यवाद, அற்புதம் செய்து விட்டு நன்றி. अद्भुत काम किया धन्यवाद, ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए। இயேசு மூலம் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. आमेन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, ये मेरे मन उसको पवित्र नाम को धन्य कर, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके सारे उपकार को कभी ना भूलना। आमेन। நம்முடைய கர்த்தர் இயேசுவின் கிருபையும் हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्यार, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा की सहभागिता நம்மோடு கூட हमारे साथ, உலகத்துல பரிசுத்தவான்களோடு கூட संसार के सारे पवित्र लोग के साथ என்னென்னைக்கும் இருப்பதாக. हमेशा रहे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। God bless you. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம்.